Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Morning. Good नमस्कार सुरेश जी भाई साहब. Good morning. मॉर्निंग अरुण जी. गुड मॉर्निंग. Good Good morning, morning. Ravi ji. Good 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 morning. morning. Good morning. Good morning. हाँ जी. How's life? Everyone. Great. Good morning. Nice. Wonderful. ऐसे great में मजा नहीं Peaceful. Quite peaceful now. Wonderful. Beautiful. Beautiful. Wonderful. Full of Full of magic. bliss. Bliss. आता. ऐसा होना चाहिए. बहुत ही बढ़िया. There should be warmth when you say बहुत ही बढ़िया. Life कैसी है? Do we have अंकित पढ़ाया है? अंकित बहुत ही पढ़ाया? बढ़िया. अंकित पढ़ाया? है नहीं. Hello. Yes, Ravi bhai. Good morning. Good morning अंकित भाई. क्या how's life? Amazing. बहुत ही बढ़िया. बहुत ही उम्दा. Very good. Very रवि good. भाई एक बहुत अच्छा मैजिक हुआ मेरे साथ. मेरा एक बहुत ही कंजूस दोस्त था. मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि वो मुझे बुलाए. तो अभी लास्ट सैटरडे फ्राइडे को उसने मेरे को इनवाइट किया. मुझे इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकता. मतलब कई दिनों से मैं सोच रहा था वो मुझे बुलाएगा जरूर बुलाएगा. वो हमेशा सोचता था यार ये बड़े नेगेटिव लोग हैं मैं इनको बुलाऊंगा नहीं. बट उसने बुलाया. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. और वो यहीं पे बैठ के मुझे सुन रहा है तो उसको वापस से थैंक यू. अच्छा अंकित बाबू ये भी बोल दो कि वो दोस्त भी मैं ही हूँ. वो दोस्त रवि उतमानी ही है. चलो वेरी गुड. थैंक यू सो मच अंकित बाबू. सो लेट्स स्टार्ट द शेयरिंग. और कौन है शेयरिंग आज? आज कौन है शेयरिंग करने वाला? यशवंत. I have a question. Yes. Can I ask? Yes please. Okay, I'm Namrata. I just want to know that how do you balance the energy? Like there are some relationships where you are always, giving, but the other person is always misunderstanding. So what do you do to really change that? What are you giving? I'm giving love and abundance. And gratitude? Yes, also gratitude, but not too much. Yes, I think I got my answer. Correct. Okay. Not too much gratitude. I have the thing that I am giving, but not experiencing Namrata that. जी, every individual by nature is selfish. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना करती हूँ, मैं इतना प्यार दे रही हूँ, so there is some kind of self thing behind that. Correct. The entire crux is gratitude. मतलब अगर आप किसी और के लिए कुछ नहीं करते हो, you don't do anything for anyone. Correct. किसी के लिए कुछ करना ऐसे बोलते हैं when जब आप किसी दूसरे के लिए करने लग जाते हो तब आप you're not a human being, you become परमात्मा, you become महात्मा. So whatever in life people are doing, it's out of their selfish nature they are doing. They're not doing anything for anyone. You don't do anything in any relationship. And you don't expect things because if you start expecting, you get this kind of dissatisfied feeling. So ये चीज एक लॉ ऑफ सेल्फ, यूनिवर्स का जो लॉ ऑफ सेल्फ है, लॉ ऑफ सेल्फ ये बोलता है कि हर इंसान स्वार्थी है. ये इस बात पे सब लोग मेरे से चिढ़ते हैं और इस बात पे No, but it's बहुत सारे लोग मेरे से डिसएग्री करते हैं दैट कि ये चीज नहीं होती है. जब भी मैं ये चीज के बारे में बताता हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ सेल्फ ये बोलता है कि किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि जब जब आप एक्सपेक्टेशन रखते हो तब तब आप हर्ट होते हो. जब जब आप हर्ट होते हो तो आप नेगेटिविटी की तरफ वापस जाते हो. true. So everyone by nature is selfish. किसी के लिए कुछ करना तब बोलते हैं जब किसी के कोई बेटा गाड़ी चला रहा है और किसी को टक्कर मार देता है और उसका फादर आके बोलता है तू हट जा, मैं गाड़ी चलाता हूँ, जो किया मैंने किया. So when you come in this stage, this is called कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो. You are doing something for someone. आपने किक मूवी देखी होगी जिसमें सलमान खान है. Yeah. So he got kick only for kids. उन बच्चों के लिए कुछ करना, उन बच्चों के लिए चोरी करना, उन बच्चों की पढ़ाई के लिए, उन बच्चों की इलाज के लिए. जब जब आप ऐसा काम करते हो तब तब आप किसी और के लिए कुछ करते हो. Otherwise always
every human being is selfish. And above that, your relationship is lacking gratitude. Start gratitude. That I agree. I totally agree. So I Okay, hope. I will do that. Thank you so much. Thank you so very much for your lovely answer. Have a lovely day. Thank you. Yashwant bhai. Very good morning and have a wonderful day ahead. First of all, I'm extremely happy and grateful to everyone. कल का एक बहुत अच्छी बात शेयर करता हूँ रवि भाई. मैंने कल मॉर्निंग में शेयर किया था मेरे बैक एक और थाई एक बहुत ज्यादा हो रखा है. तो इन इवनिंग एट 5 हम में राजेश जैन जी हैं, मेरी सिस्टर के स्कूल टाइम फ्रेंड के हस्बैंड है. मैं उनको जियाजी भी बोलता हूँ. तो ही कॉल्ड मी. पहले तो इधर उधर की बात, आउट ऑफ द नोवेयर, मतलब 2 साल बाद बात हो रही होगी हमारी. देन ही सेड कि यार तेरे दर्द है इतना, तू एक बार पूछ तो लेता, मैं उपाय बता देता तेरे को. एंड आई वाज लाइक, आपको किसने बताया मेरे दर्द के लिए? सो ही टोल्ड कि somebody from the group knows me and knows him. कहा कि यार वो बहुत परेशान है उसके हेल्थ के लिए, और उन्होंने मेरे को कुछ मतलब वो होता है ना उपाय बताया, देसी उपाय कि तू ये करेगा तो तेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. सो आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल जिसने भी उन्हें बताया, क्योंकि उन्होंने मेरे को नाम नहीं बताया कि किसने बताया है. आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम. और कुछ नई चीजें भी सीखी मैंने उनसे कल हेल्थ को लेके. तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मतलब इसको लेके बहुत मैं वो हूँ. Great Yashwant. Wonderful thing. Thank you. So let's hear it from Akhil sir. उसके बाद मेरे को आपसे 2-3 बातें और पूछनी है. ये 2011 की बात है. ये सेम प्रॉब्लम जो इनके यशवंत जी के साथ थी, ये मेरे साथ थी. और मेरी बैक में और पूरे लेफ्ट साइड के अंदर इतना जबरदस्त पेन था कि मेरे को डॉक्टर्स ने पूरा बेड रेस्ट बता दिया था, बेल्ट पहना दी थी, और मैं यूं झुक के चलने लग गया था एकदम. और मेडिसिन पे मेडिसिन चल रही थी. और मेरे को ये लगने लगा था कि मुझे हो क्या गया है, और मैं ये कैसे अपने मतलब आगे की मेरी लाइफ कैसे चलेगी. फिर मेरे को थोड़ा सा मैंने अपने आप को झंझोड़ा कि मतलब कि मैं यार क्या अभी से इतना बुढ़ा हो गया हूँ. फिर मेरे को एक किसी ने बताया कि बाबा प्रेम भगत करके है सोहना के अंदर, आप वहां पे जाओ, विश्वास लेके जाना, कुछ नहीं करता है वो, खाली उसको 6 बार दिखाना होता है और वो थोड़ा सा प्रेशर देते हैं बस, खाली, और कुछ नहीं. मैं अपना विश्वास लेके गया, गाड़ी में पूरा बैक सीट के अंदर लेट के गया मैं वहां पे, और मैंने सवेरे शाम 6 दिन तक उनको 3 दिन दिखाया उनको. और जब मैं वापस आया हूँ तो मैं गाड़ी चला के लेके आया हूँ. और उसके बाद मैंने कम से कम 7-8 जनों को वहां पे भेजा. लेकिन जो बिलीफ लेके गया कि मैं ठीक होके आऊंगा वहां से, वो वहां से ठीक होके आया है. और जो बिलीफ नहीं लेके गया कि नहीं साहब ये तो पता नहीं क्या कुछ नहीं है, ऐसा ही है, तो वो नहीं ठीक हो गया. और आज मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, गोल्फ खेलता हूँ, खूब वॉकिंग करता हूँ, दौड़ता हूँ, सब चीज कर रहा हूँ. और मेरे को उसके बाद दोबारा एक बार और हुआ था, फिर मैं इमीडिएटली चला गया, वापस आया, ठीक हो गया मैं उसके बाद. और उसके बाद मुझे कभी भी बैक पेन नहीं हुआ. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. थैंक यू अखिल सर, थैंक यू सो मच. यशवंत, एक बार आप मेरे से पर्सनली बात कर लेना प्लीज दोपहर में. Okay, sure, so sure. We have 4 hands. Before we take more sharings, आगे बढ़ने से पहले, कल मेरे को रात को ऐसे ही ख्याल आया कि हम सब लोग बहुत दिनों से साथ में हैं, ऑलमोस्ट 23-24 days, बट अपन बिकॉज ऑफ Zoom हम लोग एक दूसरे को मतलब वी डोंट हैव नेटवर्किंग, आप जानते नहीं हो. और इसके बाद अगर कोई आपकी लाइफ में छोटे मोटे इश्यूज आते हैं, तो अगर आप एक दूसरे को जानोगे तो वो जो पॉजिटिविटी आपके अंदर है, जो आप लोगों ने ली है, वो आप शेयर कर सकते हो. तो मैं सोच रहा था क्यों नहीं किसी दिन शाम को हम एक नेटवर्क इवेंट रख ले, जहाँ पे हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे से बात करें, सो दैट अगर लाइफ में हम किसी की हेल्प करना चाहें या किसी से मिलना चाहें, वी कैन डू दैट. क्या आइडिया है आप लोगों का? डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया? Superb idea, Ravi bhai. Lovely. We should. Wonderful. So thank you. I think it's a great idea. भैया मेरे दिमाग में भी सेम ये थॉट आया था 2 दिन पहले.
रवि कि जी, एज आगे का इन कोई फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम हुआ या अपन को कोई हेल्प चाहिए तो अपन कैसे किससे नेटवर्क, या आप लोगों से तो कांटेक्ट है बट जैसे और किसी से अपन को कुछ चाहिए हेल्प तो अपन कैसे कर सकते हैं? या सो अंजू जी का क्वेश्चन ये है कि हम, सॉरी अरुण सर आप कुछ बोल रहे थे प्लीज. सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक. मैं ये कह रहा था कि देयर शुड बी नो एज बार विद अस. नो सर, नो एज बार, नो एज बार. और आप तो वैसे ही सर 6 साल के हो अभी. यस सर. थैंक यू वेरी मच. तो मैं ये कुछ एक प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये जैसे जूम जैसे, जहाँ पे अपन सब लोग वी कैन पर्सनली टॉक टू ईच अदर. सो ऐसा कुछ इवेंट प्लान करें कि आप में से 15-20 लोग लाइफ के बारे में 1 या 2 मिनट की स्पीच तैयार करें, सो दैट एवरीवन कैन लिसन टू देम. एंड स्पेशली जो सीनियर लोग हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम, आप लोग आगे आएंगे तो आपसे सीखने को मिलेगा. कोठारी सर, सुरेश सर, अरुण सर, जितने भी सीनियर लोग हैं, अगर आप लोग आके लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करें सो दैट वुड बी वंडरफुल. और शाम के वक्त जब भी आप लोग कंफर्टेबल हो, 7:30 लवली. 7:30 से 8:30, और वो जूम पे नहीं होगी, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे होगी. तो मैं उसको प्लेटफॉर्म को आज ढूंढ के आप लोगों को शाम तक बताता हूँ कि किस प्लेटफॉर्म पे हम लोग ये कर सकते हैं. तो इज एवरीवन अप फॉर इट? शाम को 7:30 से 8:30, आज नहीं, इस वीक में कभी भी, वेडनेसडे, थर्सडे, जब भी आप लोग फ्री हो तो हम लोग ये इवनिंग कर सकते हैं. एंड लेट्स हैव ग्रेट टाइम ऑफ एंड सेलिब्रेशन, जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं रोज सुबह 6 बजे उठ के. ग्रेट. तो मैं आज अंकित से बात करता हूँ और आप लोगों को अपडेट करता हूँ कि लवली. हम लोग कब मिल रहे हैं. So let's have quick sharing from Rashi Kothari, please. Hello Ravi bhaiya, good morning, and Ankit. This is Rashi's sister Surbhi. Actually, every day I do it from my own Zoom, but today I'm doing it with her. So that is what I want to share today. That I was giving gratitude and affirmations from I think almost 15-20 days कि मैं किसी भी तरह I can come to Jaipur. I stay in Delhi, but my mom is in Jaipur, and nobody in my house was okay with this fact because of, again, we know why. So I don't know what happened. Saturday evening, suddenly this thought came to me. I put it across to my mother-in-law, my father-in-law, and more surprisingly, my husband was okay with it. And he said, yeah, tum jao 10 din aram se. And he himself came to drop me halfway, where halfway my mom came to pick me. And it was such a surprise for me because from him coming, because he's such a strict one, कि नहीं जाना है कहीं भी अभी बाहर. So yes, it was just a magic. And today I'm attending this session with my sister in Jaipur. That's absolutely amazing feeling for me. So thank you so much. Congratulations. So Ankit ji, so I have to address one Mona ji wala question kal ka, and that is very important for all of you to listen. Ankit ji, yes, please. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मेरे को सिर्फ एक शेयरिंग करनी थी जो कि मैं काफी सालों से कर रहा हूँ. सो आई पर्सनली फील कि अगर लाइफ में कोई भी बीमारी है तो उसका कनेक्शन हमेशा आपके विचार से होता है. और मैं इसके चक्कर में मैंने एक बुक के अक्रॉस भी आया था. मैं हील योर बॉडी, हील योर बॉडी. तो इसके अंदर मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सब ये बुक लें और इसके अंदर सारी की सारी जो भी आपको इलनेस है या बीमारियां हैं उस सब के आंसर्स हैं रिलेटेड टू योर थॉट्स. तो इट इज एन अमेजिंग बुक एंड सब लोग उसको यूज कर सकते हैं. इट कैन बी अ वंडरफुल टूल. थैंक यू सो मच. थैंक यू अंकित जी. थैंक यू रवि जी. Thank you so much. Lovely sharing, Ankit. So very helpful for everyone. And I totally agree. सारी बीमारियों का कारण आपकी सोच से है. And वो धीरे अभी 5-7 दिन में वो भी खत्म हो जाएगी. So please be with us. Second, Shraddha ji, Shraddha Kabra. Hello. Smile morning to everyone. Smile. मेरी शेयरिंग कल से रिलेटेड है. मैं भी आई एम फ्रॉम जोधपुर. अभी मैं जयपुर, अभी मैं जोधपुर आई हुई हूँ अपनी मदर के प्लेस पे फॉर 2 days. तो यहाँ पे कल मेरे फादर को बहुत ज्यादा हेडेक हुआ था. बहुत मतलब बहुत सीवियर हेडेक. ही कुडंट लाई डाउन, ही कुडंट वॉक, और बहुत वो माइग्रेन वाला अटैक था.
तो जनरली वो मेडिसिन लेकर ही उनका हील हो पाता है वापस, तो उनको वो है। तो मैंने, पर उनका नेचुरल एटीट्यूड है कि वो थैंक यू करते रहते हैं हर चीज के लिए, और जिनको कहते हैं ना मन के साफ है, जो इजीली समझ जाते हैं किसी भी चीज को। तो मैंने उनको ये चीज बताई कि आप इस तरीके से आपका हील करने की कोशिश करो पापा, कि आप मन में सोचो जैसे आप बिना हेडेक के आप क्या क्या कर सकते हो, अपने आप को वैसे इमेजिन करो, और उसके बाद बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो उन्होंने भगवान के सामने मंदिर के पास जाके बैठे और उन्होंने ये चीज बोली। उनको बैंक जाना था पर वो इसकी वजह से जा नहीं पा रहे थे, और मैं सो गई थी। उसके बाद अराउंड 1.5 आवर बाद मैं उनसे वापस मिली जब, तो मैंने पापा को कहा आपका कैसे है अभी हेडेक? तो बोले कौन सा हेडेक, मुझे तो हेडेक था ही नहीं। तो मतलब ही वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ इट, और एकदम ही वॉज नॉर्मल, जैसे वो रहते हैं और वैसे नॉर्मली बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बाहर सब जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कम्प्लीटली गॉन था हेडेक। ग्रेट 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 श्रद्धा जी, तो एटलीस्ट हमारी जो लर्निंग है वो दूसरों को भी काम आ रही है, दैट इज फैंटास्टिक, वेरी गुड वेरी गुड। सलोमी जी, आज कौन सी वो छोटी खुशी है जिसमें आप खुश हो? So yesterday what happened, one of my very close school friend का birthday था, and you know we always used to dance a lot together. So yesterday in my dance, like I do Zumba, then during my dance class I was thinking हमने कौन-कौन से songs पे dance किया था and all of that, and suddenly the last track was a you know like early 2000 का track जो हम लोग के time पे school में we would dance, and I was like just so happy, and then I called her, I wished her, and I was like पता है आज हमने Zumba में ये dance किया, and she was also so happy, like out of the blue आजकल इतने दूसरे songs चलते हैं and what we used to do, so it was really magical, like I was just thinking subconsciously, not even like manifesting strongly for it, but it did happen. सुपर सुपर आप मस्त हो, आप छोटी छोटी चीजों में भी इतनी खुश हो जाती हो, दैट इज रियली रियली नाइस, वेरी गुड। गौरव, so we have Gaurav and then we address the question from Mona ji. Hello. Yeah. Good morning रवि भाई। Good morning गौरव भाई। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, हम पर आपको देख नहीं पा रहे हैं। देख नहीं पा रहे, एक सेकंड। हाँ जी, अब देख पा रहे हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ये मेरी आज फर्स्ट इंसिडेंस में शेयर कर रहा हूँ, है थोड़ा पुराना लेकिन मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए कि अच्छा था। लास्ट वीक मैं मेरी वाइफ और 2 किड्स मेरे, हम लोग दिल्ली गए थे, मुझे कुछ काम था। देन आई वाज इन अ फ्लैट ऑफ 1 BHK। अचानक मुझे वहां पे कुछ दिन रुकना पड़ा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे फीवर भी हो गया था और थोड़ा कफ भी हो गया था, मतलब स्टार्टिंग सिम्टम्स ऑफ ऑलमोस्ट कोविड-19। तो जिससे पूरी मतलब हम चारों तो टेंशन में आ गए, प्लस पूरी सराउंडिंग्स भी भयंकर टेंशन में आ गई कि भाई एक रूम और 2 साथ में किड्स, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मेरे को वहां पे रुकना जरूरी था। फिर उस टाइम मतलब वाइफ ने बात कई जगह करी, मेरी सिस्टर ने उसी टाइम पर वाइफ को उसके लिए बताया था अपने क्लब के बारे में, तो उसने प्लस मेरी सिस्टर आस्था जी ने ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट किया और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और विदिन 4 days आई वाज कंप्लीटली फाइन। मतलब मुझे जो सिम्टम्स थे वो सारे खत्म हो गए, और अच्छा एक बहुत अच्छा वो होके कि भाई हाँ, बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और प्लस हम चारों एकदम फिट फाइन थे। नाउ वी आर बैक टू जयपुर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुपर गौरव जी, तो बहुत अच्छी शेयरिंग है ये, तो आपने कोविड को उड़ा के आए हो आप, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर अ लवली शेयरिंग। ग्रेट, आई एम सो हैप्पी, हमारे इतने साहसी मेंबर्स हैं हमारे ग्रेटिट्यूड क्लब के। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस। सो मोना जी, मोना जी आज हमारे साथ हैं क्या? डू वी हैव मोना जी टुडे? Yes, I'm here. Yes. Yeah, मोना जी, can you repeat your question please, थोड़ा सा जो सबको पता चल जाए क्या क्वेश्चन था आपका। हाँ, मैं कल ये पूछना चाह रही थी कि हम लोग ठीक है जब कुछ अच्छा करते हैं तो उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, बट देयर आर टाइम्स व्हेन यू लूज योर टेम्पर और कुछ भी छोटी सी बात हो जाती है, तो जिसके लिए आप शायद उस टाइम रियलाइज नहीं करते, बट बाद में सोचते हैं कि अब इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब इस चीज को अगर हमने कर भी दी तो उसके लिए can we still be pay gratitude for the same, or you know, I mean I don't know really how to word it nicely, but somehow कि जैसे बच्चों को कुछ बोल दिया, कभी हस्बैंड के साथ कोई बात हो गई, बट
there are always times when you go back and think about it, and you think maybe now you can rectify it somehow. Yeah, so it was basically the anger which you talked about, right? Yes, yes. It was the anger which you talked about, that how to control the anger and इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए. So ये क्वेश्चन आपसे पहले भी 2 जनों का था कि जब एंगर आता है तब कैसे होना चाहिए. तो my question is, what is anger? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि गुस्सा और एंगर क्या, how will you define this? क्या बोलोगे आप एंगर को? Sudden outburst of your emotions when things are not going your way, maybe. Yes, very good definition. कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? जब आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता या फिर लोग आपकी सुनते नहीं हैं. So basically एंगर क्या होता है? एंगर जैसे मैम ने बताया, आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस, मतलब उस चीज का परिणाम जो आपके, ऐसी भावनाएं आपके अंदर से निकलती हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, और वो भावनाएं किसी फ्रस्ट्रेशन या किसी चिड़चिड़ेपन की वजह से निकलती हैं. तो सबसे पहले तो जो हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं कि ऐसी भावनाएं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, अगर वो भावनाएं आपके अंदर से निकलेंगी तो ब्रह्मांड उस भावनाओं पे क्या बोलेगा? तथास्तु. तथास्तु. तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि जो फीलिंग्स आपके कंट्रोल में नहीं है, जिनको आप नहीं चाहते हो, अगर वो फीलिंग्स आपके अंदर से आ रही हैं तो उसका परिणाम उस वक्त क्या होगा, उसका रिजल्ट उस वक्त क्या होगा, ये चीज आपको सोचनी है. बिकॉज इतने दिनों से हम लोग यही पढ़ रहे हैं, जो चीज हम सोचते हैं वो सोचने के बाद वो फीलिंग में कन्वर्ट होती है, और वो फीलिंग है उसके बाद वाइब्रेट होके उस ब्रह्मांड उस पर बोलता है तथास्तु. अब ऐसी फीलिंग जो आपके अंदर से जनरेट हो रही है जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, ऐसी भावनाएं जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, वो अगर वाइब्रेट हो गई तो वो आपके लिए कितना बुरा करेंगी. आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो एंगर इज, यू नो, इट्स योर एनिमी. 3 गीता में लिखा है कि मतलब जन्म में जाने के लिए 3 चीजें होती हैं, हवस, गुस्सा और लालच. ये 3 चीजों को आपको कंट्रोल में रखना चाहिए, बिकॉज दे आर द गेट्स टू हेल. दे आर द गेट्स टू हेल. तो और ये आपके सोल को डिग्रेड कर देती हैं. ये तीनों चीजें आपके सोल को बिल्कुल डिग्रेड कर देती हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो ये मैम ने क्वेश्चन पूछा, आप सब लोग समझ लीजिए कि जब जब गुस्सा आए तो आपकी फीलिंग जो होती हैं आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, और जो कंट्रोल में नहीं होता उसका रिजल्ट डेफिनेटली अनकंट्रोलेबल होता है. So please try and understand the depth of it. इतने दिनों से, आज 22 दिनों से हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो हम सोचते हैं वो फीलिंग्स बनती हैं और वो ब्रह्मांड हमारे को देता है. जब आप गुस्से में होते हो तो आप किस फील में होते हो, उस चीज को आप एक बार इमेजिन करो आंख बंद करके कि वो फील कितनी डेंजरस होती है. एक बार मैं चाहता हूँ 10 सेकंड के लिए आप लोग ये इमेजिन करो जब आप गुस्से में थे, आंखें बंद करके. तो अब आप ये सोचो कि जो गंदी फीलिंग आती है, ये फीलिंग आप नहीं जनरेट करते हो, आप ये नहीं चाहते हो, ये अंदर से अपने आप जनरेट होती है, और उस वक्त आप जैसा भी रिएक्ट करते हो वो बहुत ही डेंजरस होता है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए. सो बट नाउ द गुड न्यूज इज आज से 22 दिन पहले आप लोग उस निहत्थे सिपाही की तरह थे जिसके पास कोई भी आर्म्स नहीं थे, कुछ भी वेपन्स नहीं थे. आप अनार्म्ड सोल्जर थे जिसके पास कोई भी वेपन नहीं था, और आपको बैटलफील्ड में ले जाके छोड़ दिया जाता था रैंडमली. हर दिन या ऑल्टरनेट डे आपको बैटलफील्ड पे छोड़ दिया जाता था कि तू लड़ ले. और जब जब आपके पास आर्म्स नहीं होते थे तब तब आप लोग ऐसे ही रिएक्ट करते थे कि किसी ने आपको गाली दी तो आप भी उस पर बरस जाते थे, किसी ने आप पे पत्थर फेंका तो आप भी उस पे पत्थर फेंकने लग जाते थे. बट नाउ आफ्टर 22 days you are an armed soldier. आप लोगों के पास सारे वेपन्स हैं. आप लोगों को लव, सेल्फ लव, पेशेंस, पॉजिटिविटी, सारे वेपन्स आप लोग सीख चुके हो.
और सबसे बड़ा वेपन जो AK-47 है, एक सोल्जर के पास AK-47 हो, वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड आप लोग सीख चुके हो, जो आपको एंगर से दूर रखने में मदद करेगा। पहले हर कोई आदमी आके आपके पास चढ़ जाता था, पर अब आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी ऐसे हो गया है कि कोई दूसरा इतनी आसानी से आपके पास नहीं आ सकता। और अगर आ भी गया, आपको चिड़चिड़ा बनाया भी, तो आपके पास ये सारे वेपन्स हैं लड़ने के लिए उससे। All these weapons are very important in your life, which you have learned. क्योंकि गुस्सा क्या होता है, गुस्सा आपको अंदर से भी अटैक करता है, बाहर से भी अटैक करता है। आप समझ रहे हैं? Am I going on the right track? Are you understanding what I'm telling? ये जो वेपन्स हैं आपको गुस्से से, एंगर से काफी हद तक मदद करेगा। और दूसरी बात ये कि एंगर जो होता है आपके, I mean it's coming from inside and outside both. आपको अंदर से भी अटैक करता है और बाहर से भी अटैक करता है। आपके अंदर भी कचरा करता है और बाहर से भी कचरा करता है। So it is very important that आप अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। जब मैं शुरू से ये बोल रहा हूँ, जो लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं, वो लोग गुस्सा बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। और अगर आप लोग अपने आप को ट्रेन कर लेते हो पॉजिटिविटी से, ग्रैटिट्यूड से, लोग साधना भी करते हैं कि हमारे को गुस्सा नहीं आए, तो आप अपने अंदर गुस्से से लड़ने की पावर डेवलप कर लेते हो। You develop power to win from anger when you start getting spiritual. इसलिए मैंने बोला कि अब आप वो सोल्जर्स हो चुके हो जिसके पास वेपन्स हैं गुस्से से लड़ने के लिए। मेरा क्या है, I just want to share my feeling. See, anger sometimes for right purpose is a good thing. अगर आप सही काम के लिए गुस्सा कर रहे हो तो वो एक अच्छी चीज है, पर आप उस काम के लिए अच्छा गुस्सा कर रहे हो जो आपके बस में नहीं है, वो सही नहीं है। मैं अपने एग्जांपल दूंगा। लास्ट वीक हमारी फैक्ट्री में हमारा एक सीनियर आदमी, बहुत सीनियर आदमी, जिससे मैं हर चीज डिस्कस करता हूँ, उसको मैंने डिस्कस करके पूछा ये डिसीजन हम अपनी फैक्ट्री के लिए ले रहे हैं। वो बोला सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, इससे अच्छा कोई कर नहीं सकता। और नीचे लेबर्स स्टाफ को जाके उनको उल्टी सीधी बात करी, उनको भड़का दिया कि तुम लोग इस डिसीजन पे हाँ कैसे भर सकते हो। एंड देन आई हैड रिकॉर्डिंग, मेरे को किसी जूनियर स्टाफ ने रिकॉर्डिंग दी कि सर ये चीज ऐसे की जा रही है। मेरे को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, और मैंने उसको बुला के, उस वक्त मैंने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। माई थिंग इज आई टेक 24 hours to 72 hours टू डिसाइड कि क्या करना है। मैंने उस वक्त बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, अपने आप को 24 घंटे का समय दिया कूल डाउन होने के लिए कि गुस्से में आके मैं गलत डिसीजन नहीं ले लूं। 24 घंटे बाद से लेके 72 घंटे तक, सैटरडे इवनिंग उसने ये काम किया। ट्यूसडे इवनिंग मैंने उसको बुला के, उसके साथ बात करके, उसके साथ शेयर करके कि हम लोग दो अलग लोग हैं, मेरे को नेगेटिव लोग पसंद नहीं है, आई रियली विश कि तू रिजाइन कर दे। और मैंने उसको ग्रेटिट्यूड भी दे दिया और उसने रिजाइन कर दिया। बिकॉज मैं किसी को आज तक अपनी लाइफ में मैंने किसी को फायर नहीं किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से। आई एक्सप्लेन्ड हिम दैट आई रियली डिड नॉट लाइक इट, और मेरे को जिस तरीके से तूने व्यवहार किया और जो तू कर रहा है, कंपनी में नेगेटिविटी फैला रहा है, हम लोग साथ में आगे नहीं बढ़ सकते। सो गाइस, ये चीज, इस चीज को आप समझ लीजिए, जब भी गुस्सा आए अपने को कम से कम 24 घंटे दीजिए और 72 आवर्स तक उसको रिएक्शन दीजिए। रिएक्शन देना जरूरी है। अगर आप रिएक्शन नहीं दोगे अच्छी चीजों के गुस्से पे, तो लोग आपको ग्रांटेड ले लेंगे। पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड ऑल द टाइम। सो अगर कोई ऐसी चीज है, जो इंसिडेंट्स मैंने आपको दिया है, आपको यू मस्ट टेक टाइम। किसी भी सिचुएशन पे इमीडिएट रिएक्शन नहीं होना चाहिए एंगर पे। एंगर फॉर राइट पर्पस इज अ गुड थिंग। अगर आप सही चीज के लिए गुस्सा हो रहे हो तो वो अच्छी चीज है, आपको वो रिजल्ट लाके देगा। द एग्जाम्पल विच आई शेयर्ड। सो आई थिंक एक चीज पूछनी थी भैया इस एंगर पे, मींस आई रियली वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन। कोई आपको बार बार बोल रहा है कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, और हम ऐसे नहीं है, तो आपको उस टाइम कैसे एंगर को अपने कंट्रोल करना चाहिए? आप अपने, दूसरा कोई कौन होता है आपको जज करने के लिए? अगर सड़क पे चलते हुए, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, सड़क पे चलते हुए कोई कुत्ता आपको भौंकेगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा? उसको अवॉइड करके चले जाएंगे या अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। ठीक है, आप वापस तो नहीं भौंकोगे ना उस पे।
नहीं नहीं, फालतू में क्या मतलब है, अपन को ही काट जाएगा। ठीक है, तो आपको क्यों लोड लेना है लाइफ में? आपके पास इतने बड़े वेपन्स हैं और इतनी है, एक दो बार इसको इग्नोर कर दोगे तो वैसे ही अपने आप बंद हो जाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग गुस्सा क्यों दिलाते हैं? क्योंकि आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि आप बर्स्ट करते हो। चलिए, एनीवे, सो दिस वाज द स्मॉल थिंग। हम लोग लेट हो रहे हैं, अंकित का मैसेज आया है। अंकित ने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है, क्योंकि आप सब लोगों को ब्लेसिंग्स और अफर्मेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो अंकित ने बहुत मेहनत करी है आप लोगों को समझाने के लिए कि ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, अफर्मेशंस क्या होती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई होप दिस एंगर थिंग थोड़ा सा आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया कि गुस्सा क्या होता है और कैसे कंट्रोल होता है, एंड समझ में आ गया। मोना जी, was it good enough, do you think? Yes, Ravi Bhaiya, thank you for explaining it so well. We'll try to incorporate in daily life. Thank you. So Yes, let's yes, welcome. very good idea. Thank you so much. Ankit, let's have you here. तो बहुत अच्छा लगता है सुबह आप सब लोग टाइम को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। So you know today the Zoom chat was full at 6:21 and I was noting the time. आप सब लोगों को thank you very much and a very good morning from Ankit. That you know you have a great day for today. आज का जो टॉपिक है ना, it is one of the most powerful presentation I have made till now. मतलब you know this will alter your thinking from now onwards. It will alter your thinking. So I'm so happy and excited. Are you guys excited? आप लोग excited हो? Please type yes in the chat box. Yes, yes. So I need one volunteer. Please, can anybody can read for me? So we have Meher Bhatia. Meher Bhatia ji, can you please unmute yourself? Hello. So any Priyanka ji, you can unmute yourself. Hello. Hello. So Priyanka ji, you can unmute if Meher ji is not available. Hello. Can I भैया? हाँ चलो अक्षता, let's start. ठीक है, तो मैं जब कहूँगा जब आपको बोलना है, उससे पहले कुछ नहीं बोलना। ओके ओके। एक साल पहले ऐसा था जब मैं मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आया था, मैंने मैनिफेस्टेशन को समझा भी था and I was start practicing और मैं अटक गया था। You know what, things were not working, I was confused, यार क्या है क्या नहीं है, कैसे लिखना है। जो आप सबके थॉट्स है ना, मतलब वो सब थॉट्स मेरे को भी थे, बड़ा कंफ्यूजन था। तो आज की जो मेरी शेयरिंग है ना, आज की जो मैं 7 tips I share to write about affirmations, that will change your way journey towards your manifestation. मतलब आपका manifestation will go to that next level. It is one of the most powerful presentation that I have made today. So today's topic is blessings versus affirmation. So what is blessing? So Akshita, can you read? Yes. Dear universe, thank you with all my heart for everything in my life, for what you have given me and still giving me. So blessings जो चीज है उसके अंदर आपको you know you are thank you for the universe with the heart, you know, from the heart, that what you have given me and you are still giving me. So blessings is something which you are blessed for, जो आपको मिल चुका है और मिल रहा है। Am I clear? मतलब this blessing thing is clear. मतलब blessings I have already discussed many times. If blessings is clear, please type yes. अगर किसी को कोई confusion है blessings को लेके, please आप अभी क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो you know the confusion is clear. तो मुझे कई बार ऐसे कॉल आते हैं कि हमने ना आने वाली चीज को ब्लेसिंग दे दी अभी से। एफर्मेशन क्या है, वो क्या है, ब्लेसिंग्स क्लियर हो गया अभी तक? ब्लेसिंग्स वो चीज है जो कि आपको मिल चुकी है या मिल रही है प्रेजेंट में। This is blessings. चलिए, blessings is clear, so we move forward. So what is affirmation? So affirmation की definition है, Akshita, can you read please? Affirmation are simple, positive statements declaring specific goals in their completed states. Although they sound rather basic at that level, these empowering
mantras have profound effects on the conscious and unconscious mind. Affirmations ऐसे वाक्य है जो यदि लगातार दोहराए जाए तो वो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं, जिससे हमारे काम पर उसी तरह का असर होता है और अतः हम वही बन जाते हैं. अफर्मेशन हमारे चेतन और अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं. इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं. ठीक है. So affirmations are statements. Are statement who affects your subconscious and conscious mind. Affirmations जो एक statement होते हैं जो कि आपके mind, conscious mind को और subconscious mind को affect करते हैं. अगर मैं बोलता हूँ आप लोगों को you are energetic, you are so blessed, you are superb, तो आप लोग थोड़े दिन बाद अपने आप को समझने लग जाओगे कि हाँ यार हम तो बहुत एनर्जेटिक हैं, मजा आ गया यार, हमारे में क्या एनर्जी है, वी आर सुपर पीपल. और अगर मैं उल्टा बोलूं आपको कि यार तू कितना बड़ा गधा है, तू तेरे को कुछ नहीं आता, तेरे को अक्ल नहीं है, तो कुछ दिन बाद अगर मैं रेगुलरली ये बोलूंगा तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार एक्चुअली मैं गधा हूँ, हाँ यार मैं तो ये कर नहीं सकता. और आपने जीवन में बेसिकली जो भी आप हो आज की तारीख में वो सिर्फ आपके एफर्मेशंस के कारण हो. आप अपने मन में आपके बारे में क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, कैन यू डू इट, कैन यू डू नॉट डू इट, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, these are all affirmations. And whatever life you are living it is all due to affirmations. So affirmations are statement which affects your conscious and subconscious mind, and your manifestations start from your unconscious mind. जो आपका mind होता है ना, your mind, या manifestations start from unconscious mind. So are we clear about affirmations? Please type yes. Affirmations में कोई भी confusion on definition point. आगे आने वाली जर्नी पे कैसे manifest करना है, I will take it next day. मतलब अभी आगे presentation के अंदर. Thank you very much. Thank you. So let's understand what is conscious mind and subconscious mind. मैं थोड़ा सा इसके अंदर वापस से जाऊंगा because it's very important. So our subconscious mind, मतलब एक चैट में अगर आप देख रहे हो तो अपना conscious mind is 10% of a mind and our subconscious mind is 90% of a mind. अगर आपका जो सर है उसमें conscious mind सिर्फ 10% हिस्सा है और subconscious mind आपका 90% हिस्सा है. आप सब लोग अगर ये चैट सुन पा रहे हो तो आप सिर्फ अपने 10% माइंड को, ब्रेन को यूज कर रहे हो, और आप सब लोग जब सोते हो आप अपने 90% माइंड को यूज करते हो. अच्छा अक्षिता, कैन यू रीड दिस? कॉन्शियस माइंड क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या क्या करता है? Yes, conscious mind 10%, analysis, thinks and plans, short-term memory. Subconscious mind 90%, long-term memory, emotions and feelings, habits, relationship patterns and addictions, involuntary bodily functions, creativity, developmental stages, spiritual connection and intuition. So आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी कोई आप, मैं और आप बात कर रहे हैं, यू आर एनालाइजिंग इट, थिंकिंग इट, और एक शॉर्ट टर्म मेमोरी की आपके अभी आने पिछले 5-6 दिनों में क्या हुआ था वो सब आपके कॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है. और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका एक, अब इस तरीके समझिए कि आपकी हार्ड डिस्क है, और हार्ड डिस्क में जो जो पुरानी अपने साथ जो चीजें हुई हुई है वो स्टोर्ड है. तो योर लॉन्ग टर्म स्टोरेज इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड. जितने भी आपके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बिलीव्स हैं, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है. इट्स नॉट इन योर कॉन्शियस माइंड. आपकी जो हैबिट्स है, कुछ काम करने का पैटर्न है, रिलेशनशिप पैटर्न्स हैं, कुछ एडिक्शंस हैं कि आपको मान लीजिए आइसक्रीम से एडिक्शन है या टॉफी से है या गेम खेलने से है, वो एडिक्शन इज ऑल थ्रू सबकॉन्शियस माइंड. इवन आप अपने बॉडी के जो सारे फंक्शंस हैं, जैसे आप अभी आज अपने बॉडी के ऊपर बहुत चर्चा हुई थी, तो आपकी बॉडी के अंदर आपको पेन महसूस हो रहा है तो आपके सब पेन महसूस हो रहा है. तो आप ब्रीदिंग कर रहे हो वो सबकॉन्शियसली कर रहे हो. आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो सबकॉन्शियस में है. तो you have a strong immune system, you have weak immune system, your subconscious mind decided. How creative you are, it is from your subconscious mind. So let's go एक मिनट. So एक बेसिक डिफरेंस जो है ना, सबसे मेन बेसिक डिफरेंस वो ये है. तो अक्षिता, कैन यू रीड? Conscious mind can tell difference between right and wrong. Subconscious mind cannot tell difference between right and wrong. So this is one of the most powerful statement. आप कॉन्शियस माइंड के अंदर जब आप मेरे से बात कर रहे हो, यू कैन से यार ये राइट है, ये रॉन्ग है, बट आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन नहीं मालूम.
उसको नहीं मालूम है क्या सही है क्या गलत है. You have the power to program your subconscious. आप जैसा उसको बोलोगे ना आप वैसा बन जाओगे. फॉर एग्जाम्पल आप आज तक अपने बारे में क्या बोलते आ रहे हो, मेरी रिलेशनशिप कैसी है, वही आप सच्चाई, चाहे वो गलत है. इट्स नॉट लाइक दैट. आपने खुद ने देखा है 20 दिन के अंदर आपकी रिलेशनशिप बदल गई, या 20 दिन के अंदर आपकी वर्क लाइफ बदल गई, या 20 दिन में आप में चेंजेस आ गए. 20 दिन पहले आप क्या थे, आज आप क्या हो. देयर इज अ डिफरेंस, यस और नो. तो पहले आप अपने सबकॉन्शियस से बोलते थे कि यार मेरी जिंदगी तो यही है, और सबकॉन्शियस मान लेता था कि हाँ यार मेरी जिंदगी तो यही है. और आपने 20 दिन के अंदर ग्रेटिट्यूड देके नहीं मैं मेरी जिंदगी बदलूंगी, मेरे साथ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, और सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि हाँ मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा. एंड देन योर लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग इट because your subconscious mind registered that you are very grateful and you want a good life. Every manifestation जो आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, it is coming from your subconscious mind. This is a very powerful thing. मतलब you have to, ये गोला अगर आप इस चीज को लेके समझ गए और अपनी जिंदगी में कोई भी चीज के अंदर ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लिया ना कि मैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड से क्या सोच रही हूँ जिससे वो चीज नहीं हो रही है, आप एक एक चीज को समझ लो. इट्स द मोस्ट बेसिक साइंस जहां पे हर चीज अप्लाई होती है. आर वी क्लियर? क्या हम क्लियर हैं? चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर. सो हाउ टू प्रोग्राम योर माइंड, ये बात आती है, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, अभी फिर से डिस्कस करता हूँ. इट इज रिपीटेशन एंड इम्पैक्ट. जब हम स्कूल में थे, अक्षिता टेल मी यस और नो, कि जब हम स्कूल में थे अगर हमको कोई चीज याद नहीं होती थी, मेरे फादर क्या बोलते थे मेरे कि 5 बार पढ़ ले बेटा याद हो जाएगी. ट्रू भैया, यस. 5 बार पढ़ ले तो यू रिपीट, जस्ट रिपीट. सेकंड इज इम्पैक्ट. अक्षता क्या आपको ये ध्यान है कि जब आपकी शादी हुई थी, आपकी शादी कहाँ हुई थी, आपने कौन सी ड्रेस पहनी हुई थी, आपके आसपास कौन था, आप क्या फील कर रहे थे? डू यू रिमेम्बर क्लियरली? नहीं भैया. ओके. शादी के दिन शादी वाला दिन, यस. मैं शादी के दिन की बात कर रहा हूँ, जिस दिन आपकी शादी हो रही. यू रिमेम्बर इट राइट? यस. 5 दिन बाद कहाँ थे, आपको याद है क्या? 5 दिन बाद कहाँ थे, याद है क्या? क्या कर रहे थे उस वक्त? नो. इतना क्लियरली याद नहीं होगा. नहीं. बिकॉज दैट मेमोरी वॉज नॉट सो इम्पैक्टफुल. अपने बिलीफ जो कैसे बनते हैं, किसी दिन किसी ने बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो अपना बिलीफ बन गया कि हाँ यार मेरे साथ बिल्ली काटती तो कुछ बुरा होता है, या थर्सडे के अंदर कुछ हुआ तो थर्सडे मेरे लिए खराब है, सैटरडे अच्छा है. These are all belief systems because that memory was so impactful that it registered in your subconscious mind कि भैया ये गड़बड़ है. तो अगर कोई चीज बुरी हो सकती है इम्पैक्ट से, तो कोई चीज अच्छी भी हो सकती है ना इम्पैक्ट से. Certain memories are so impactful कि आपकी जिंदगी में आपने जीवन में कुछ किया था and becomes an impact and now you always believe कि अगर हाँ ये हुआ तो मैं ये कर सकता हूँ, I can do it. Because it was impactful, because it was a positive impact, and certain has a negative impact. So, हमको हमारे जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, नेगेटिव मेमोरीज हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं, उन सबको चेंज करके प्रोग्राम करके पॉजिटिव लेके आना. क्योंकि नेगेटिव कहीं नहीं लेके जाएगा, सिर्फ अंदर कुएं में लेके जाएगा, आगे कहीं लेके जाएगा. So what do you repeat yourself? आप रिपीट क्या करोगे? That is called affirmation. एफर्मेशंस को आप इस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, जिस तरीके से आप उसको बार बार रिपीट करोगे तो आप अपने माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हो. तो एफर्मेशंस इज फॉर 2 थिंग्स. एक तो आपके नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, उसको चेंज करने के लिए एफर्मेशंस बनाएंगे. और दूसरा अपनी जिंदगी के अंदर व्हाट वी वांट टू मैनिफेस्ट, उसके लिए एफर्मेशन बनाएंगे. अभी तक सबको सब कुछ क्लियर है? अक्षिता, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. यस भैया, क्लियर. नहीं, everybody please type yes in the chat box. Is it clear? Is it anybody have any doubt? Let's clear it out. Ankit bhaiya, you mean to say कि affirmation से all the negative belief will turn into positive and even we can help to manifest, right? Yes. And negative belief को positive belief में कैसे convert करना, I will tell you now. That's the next step. Yeah, that's what I wanted. And you can definitely, affirmations are statement, positive statement which you affirm yourself कि ये मैं हूँ.
Can you give an example? जैसे अभी आ रहा है नेक्स्ट एग्जांपल, 2 स्लाइड बाद. आई एम गिविंग यू ऑल द एग्जांपल्स, बेसिक जनरल एग्जांपल्स आल्सो एंड स्पेसिफिक एग्जांपल्स आल्सो. डेफिनेटली ये मैं पूरा एग्जांपल दूंगा. Could you please repeat the last statement? मतलब about Tanya ji, about what? Like मतलब वो जो आप बोल रहे थे कि अफर्मेशंस के थ्रू वी कैन मैनिफेस्ट थिंग्स एंड yes, affirmation के थ्रू आप अपनी जिंदगी आने वाली जिंदगी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो. एंड इवन आपके जो नेगेटिव बिलीव्स हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ये कर सकती नहीं हूँ, मैं सब दैट काइंड ऑफ बिलीव्स को भी आप रीमोडिफाई कर सकते हो. यू कैन मेक योर बिलीफ, जो पॉजिटिव बिलीफ है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जिससे आपके नेगेटिव बिलीफ का असर ही खत्म हो. ओके ओके Okay, thank you. So let's move forward. So how to write affirmations? These are 7 points to write affirmations. So Akshita, can you read point number 1? How to write affirmation. Start with the words I am grateful to the universe. So पहला point जो है वो ये है कि you are starting it with, जो भी affirmation start होता है अपने से start होता है. I am, मैं अभी ये हूँ. I am, मैं अभी सृष्टि को धन्यवाद देता हूँ. मैं सृष्टि को, मैं अभी कृतज्ञ हूँ सृष्टि के लिए. तो आपका जो भी affirmation स्टार्ट होता है, that is a very, ये जो 2 वर्ड है, that is one of the most powerful word. So all your affirmations start with I am, मैं अभी, I am. Okay. Second, use the present tense. So आपको जो भी आप affirmations लिख रहे हो वो present tense में लिखनी है. Present tense मतलब जैसे अगर आपको कोई चीज चाहिए कि I am, you know, you want to be a millionaire, तो आप ये नहीं लिखोगे कि आप millionaire हो. You want to be a millionaire, आप ये लिखोगे I am millionaire now. I am now doing this. So now is a present tense. मैं अभी ये हूँ, मैं अभी ये कर रहा हूँ. All the affirmation has to be written in a present tense. अगर कोई सेंटेंस को अगर आप रीड करो तो उसमें ये आना चाहिए कि हाँ, this is in present. Second, third point पढ़ना. State it in the positive. Affirmation what you want, not what you don't want. So जो आप ये सेंटेंस बनाओगे वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए और उसके अंदर जो आपको चाहिए वो मांगो, जो नहीं चाहिए ये नहीं मांगना. कई स्टेटमेंट मेरे को आए कि है ना, आई एम वेरी हेल्दी और मेरे को है ना कोई बीमारी नहीं है. आप सिर्फ हेल्थ मांग लो, पॉजिटिव चीज लिख लो, नेगेटिव चीज को हटा दो. उस एफर्मेशन में पूरी स्टेटमेंट हैज टू बी पॉजिटिव. देयर शुड बी नो नेगेटिव वर्ड जो आपको लिमिट करे कि आई एम डेब्ट फ्री. आई एम डेब्ट फ्री इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट. डेब्ट इज ऑलवेज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव इमोशन. इसकी जगह यू हैव टू राइट आई एम कैश रिच. ठीक है. Fourth point, keep it simple. So एक साइंस है, सिंपल चीजें सबको समझ में आ जाती है, माइंड में फट रजिस्टर कर जाती है. कॉम्प्लेक्स चीजें किसी को समझ में नहीं आती. तो कोई भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हो ना, सबसे सिंपल लिखो, सबसे सिंपल. मेक इट एज सिंपल एज यू कैन. ठीक है. Fifth point, make it specific. So you have to be specific. आपको क्या चाहिए? जैसे मैंने एक बार पहले ही बताया था, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी के अंदर कौन से कलर की गाड़ी चाहिए, उसमें सीट कवर क्या चाहिए. मेक इट स्पेसिफिक. आप क्या लिखते हो कि मुझे ना धन दौलत दे दे, कितनी लिखते हो ये लिखते नहीं. यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि मुझे इतना धन चाहिए, मुझे ये घर चाहिए. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. जो आप लिखोगे ना वही आपके साथ होगा. 6th point, include at least one dynamic emotion or feeling word. So एक आपका जो सेंटेंस है उसके अंदर एक इमोशन और एक फीलिंग वर्ड का है कि आई एम लविंग इट, आई एम एंजॉयिंग इट, मैं बहुत खुश हूँ, इट वाज अमेजिंग फीलिंग. एक फीलिंग का वर्ड ऐड कर देंगे तो उसके अंदर फ्यूल ऐड हो जाता है फीलिंग, क्योंकि आपको ट्रिगर करता है फीलिंग पार्ट. आपकी जो फीलिंग आ रही है ना, अगर उस एफर्मेशन को अगर आप पढ़ोगे ना, यू फील हैप्पी. एंड फीलिंग इज द लैंग्वेज व्हिच यूनिवर्स अंडरस्टैंड. तो अगर अपन एफर्मेशन को पढ़ रहे हैं ना, यू हैव टू फील. तो एक फीलिंग वर्ड को भी ऐड करना है. मैं एग्जांपल दूंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. मेरे पास 2 एग्जांपल्स हैं. आई विल गिव द होल एग्जांपल.
7th point. Make affirmations for yourself, not others. अच्छा, एक क्या है ना, बहुत सारी क्वेरीज है कि मैं इसके लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ. मैं ये कहता हूँ, अगर हर आदमी किसी और के लिए एफर्मेशन लिखना चाहता है और किसी और की जिंदगी में चेंज लाना चाहता है, तो मतलब दुनिया के अंदर तो फिर तो जो दूसरा वाला चाहेगा वही होने लग जाएगा. जैसा अभी रवि भाई ने भी कहा था, कोई आप पे गुस्सा कर रहा है, कोई रास्ते में चलता हुआ आदमी कोई भी आप पे भौंक रहा है, तो आप उसमें रिएक्ट थोड़ी करोगे. I'm taking a negative example, sorry. So, you should write affirmation for yourself, not for others. Start manifesting for yourself कि हाँ, मैं अपने लिए मैनिफेस्ट करूंगी, सामने वाला बंदा अपने लिए मैनिफेस्ट करेगा. आप उसके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं इफेक्ट कर सकते जब तक वो नहीं चाहेगा. So start writing affirmation for yourself. Affirmation is for affirming yourself, not others. So are we clear on this point? Please type in chat box yes. कुछ confusion है, किसी को भी doubts है, किसी लिखते कैसे हैं? I think I have made very clear. मैं आपको example दूंगा, उससे picture बहुत crystal clear हो जाएगी. So these are certain affirmation examples. Some examples. I'm truly grateful to the universe that I am now celebrating having achieved my ideal weight of dash kgs and I am looking very handsome. So ये एक statement है जिसके अंदर मैंने यूनिवर्स को थैंक यू बोला है, मैंने अंडरलाइन करा है, एक चीज अंडरलाइन करी है, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, या फिर आप इसकी जगह थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी लिख सकते हो. आई एम थैंक यू I am now celebrating having achieved my ideal weight of this x kgs and I am looking very handsome. You can be more specific कि हाँ मैंने ये x inches भी achieve कर लिया. I'm truly grateful to the universe. I am now earning dash year 2020. So मैंने इस statement में ये लिखा है, I am truly grateful to the universe that I am now earning x amount of money in the year of 2020. आप अगर कुछ पैसा कमाना चाहते हो तो किस साल में कमाना चाहते हो, बी स्पेसिफिक. तो यूनिवर्स को पैसा तो दे देगा, पर वो जिंदगी मतलब आपकी आने वाली लाइफ में पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. आगे. I am truly grateful to the universe that I am enjoying the family trip to dash. So मैं अगर कोई फैमिली ट्रिप जाना चाहता हूँ मेरे साथ और कहाँ जाना चाहता हूँ, उसके अंदर डैश के अंदर आप लिख लो, the thing will be done. So you are programming your subconscious mind कि I am truly grateful. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. I am very grateful that I am enjoying my family trip. Enjoying is a feeling word. I am celebrating is a feeling word. Joyful driving is a feeling word. So in all the affirmation, I've started using some feeling words. Again, I am truly grateful to the universe that I am now celebrating to be mother or a father of a baby, of a boy or a girl. So इसके अंदर भी सेम है. I am truly grateful to the universe that I am celebrating. मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि मैं एक फादर हूँ जो कि बेबी बॉय का एक फादर बन चुका हूँ. I am so happy and grateful to the universe that I am now joyfully driving my new blue dash car from dash to my dash. ठीक, आप पढ़ लो, पूरा पढ़ लो अब. I think it's okay. I am loving to the work and business I am doing. I am grateful to the. हाँ, एक सेकंड, सॉरी बीच में रुक रहा हूँ. This is the sixth statement is that कि it's a generic statement कि मैं जो काम कर रहा हूँ या मैं जो business कर रहा हूँ, I'm loving it. So it is like मैं जो काम कर रहा हूँ, I'm loving it. I'm not asking universe. I'm just reaffirming myself in my mind, in my subconscious mind. आगे. I am grateful to the universe for the love and companionship I share with the dash partner name. I am so thankful and grateful to the universe that I am now celebrating the feeling that my family member are very healthy and happy. Now we are all enjoying the life to the fullest. I am enjoying living in my beautiful beachfront villa on the dash of the dash. I hope जितने भी affirmations हैं, I have stated many examples. So do you have any confusion? राशि जी, आपको प्रॉब्लम है? Please clarify point number 2. So point number 2 is for the earnings. आपको क्या earning करनी है, ठीक है? So housewife should write about earning. Second point,
तो हाउसवाइफ के लिए मैं ये कहता हूँ, अगर आप वर्किंग हो, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली राइट फॉर द अर्निंग्स, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर मान लो आप काम नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट आप घर को संभाल रहे हो, तो आपको घर संभालने के लिए या अपने खर्चे के लिए जो पैसा चाहिए वो मैजिक रूट के अंदर लिख दो। I am truly grateful to the universe now that my husband is giving me X amount of money per month. योगिता जी, how it will happen, leave it to universe, होना ही है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट उसका भी आपको मैं बताऊंगा आगे नेक्स्ट दूसरी स्लाइड के बाद, how it will happen, how the manifestation works, एग्जांपल से। भैया, I have a question. बताएं। जैसे हमने टॉप 10 डिजायर लिस्ट बनाई थी, उसमें ये सब आएगा, अफर्मेशंस आएगा, राइट? हाँ हाँ, यस, वो ही क्लियर कर रही थी भैया। आपने जब टॉप 10 डिजायर्स बनाई थी, उसके अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। टॉप 10 डिजाइन की जब आपने लिस्ट बनाई थी, तो आपने ये बोला था, जो रोंडा ब्रायन ने बोला था कि आपको जो चाहिए वो आप प्रेजेंट टेंस में लिख दो कि हो चुका आपके साथ, ठीक है। तो मैंने भी यही लिखा है, मैंने जो सेंटेंस में लिखा हुआ है ना, तो सेंटेंस की जगह थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख दो, थैंक यू तो आई एम नाउ सेलिब्रेटिंग हैविंग अचीव माय आइडियल वेट, थैंक यू आई एम नाउ अर्निंग दिस अमाउंट ऑफ मनी। या फिर ये जो एफर्मेशन है कि मैं हूं, यू कैन यूज व्हाटएवर यू वांट, इवन यू कैन राइट थैंक यू in front, and that, or otherwise you can write I am truly grateful to the universe. It's your personal choice, it's the same thing. थैंक यू भैया। तो राशि जी, मेरा ये कहना था कि जो 13 नंबर का चैप्टर था, उसमें रोंडा ब्रायन ने ये कहा था कि आप कोई भी चीज जो आप चाहते हो जिंदगी में, उसको प्रेजेंट टेंस में मान के आज मान लो कि वो हो चुकी, एंड से थैंक यू टू इट। उसका ये तरीका था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम नाउ अर्निंग X amount of money this year. You can use like that, or you can use like that, I am truly grateful to the universe that I am now earning X amount of money. So these is again, अभी जैसे ये मैंने स्लाइड अभी जस्ट ऐड करी है, बिकॉज अभी अपन एंगर पे बात कर रहे थे, और कभी भी आप कोई भी फीलिंग की जोन में हो, you can use this affirmation. So I will point out this affirmation. Akshita, can you read this angry thing? Yes. Angry, hatred, rage. आ रहा है तो आप ये affirmation use करके you can reprogram your mind to control your anger. So please read. Angry, hatred, rage, jealousy, revenge. All is well. I love myself and I like myself. I let go of my anger so I can see clearly. It's just a feeling. I let it go. I forgive dash and let go easily. I am strong. I'm bigger than this. I talk positive to myself. So this is kind of affirmations which you can use for angry, when you are angry. और ये है ना, हर फीलिंग के अंदर है, जो भी फीलिंग, अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हो तो स्टार्ट रिपीटिंग दिस एफर्मेशन। मतलब एक माला लेके अपन, कई बार तो ना बुरा लग रहा तो अपन माला लेके बैठ जाते, तो इसकी माला फेर लेना आप, आई एम गुड, आई एम हैप्पी, आई फॉरगिव दिस गाय एंड लेट इट गो इजीली। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो थिंकिंग है वो शिफ्ट कर जाएगी। सो अब आप एफर्मेशंस कैसे करते हो, हाउ डू यू गेट योर डिजायर्स? सो वी आर रनिंग वेरी लेट ऑन द टाइम, सो आई एम रियली सॉरी। So this is your current reality and this is your new reality, desired new reality. आपको कुछ नहीं करना, आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है कि ये चीज हो चुकी है। सब कॉन्शियस माइंड आपका कुछ भी सोचे, करंट रियलिटी में रहे कि हाँ मेरे साथ नहीं हुआ या हो रहा है, बट सबकॉन्शियस माइंड में ये होना चाहिए कि हो चुका मेरे, I have earned this amount of money, I have achieved my ideal weight, I have done my thing, and you जैसे जैसे आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहो, उसको ग्रेटिट्यूड ब्लेसिंग देते हुए उसको एनर्जी देते हुए। Are we clear on manifestation? How did we manifest for things? कैसे मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है? सिर्फ अपने सबकॉन्शियस, हम जैसा पूरी वर्कशॉप में मैंने और रवि ने एक ही बात बोली है कि अपने को दुनिया को नहीं समझाना, अपने को अपने मन को समझाना है। This is crux of all those things. This is crux of all those things. You have to, आपको अपने किसी और को कुछ नहीं समझाना, आपको अपने मन को समझाना है, सबकॉन्शियस मन को समझाना है कि ये हो चुका मेरे लिए। और उस मन को समझाने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड को समझाने के लिए, you have to write affirmations. You have to write affirmations.
सो और जितना आप फील कर सकते हो ना, उतना स्ट्रॉन्गर आपका सबकॉन्शियस माइंड जल्दी से रजिस्टर करेगा. दैट्स थैंक यू अक्षता, थैंक यू वेरी मच. सो आई विल टेक थैंक यू सो मच. तो मैं एक छोटी सी स्टोरी, मैं एंड करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता था कि जब मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जब हम सब लोगों ने चालू किया था ग्रैटिट्यूड क्लब, उससे पहले अपने एक लाइफ जीते थे, उसके अंदर डिनायल मोड में रहते थे कि ये होगा नहीं होगा, क्या होगा, मेरी लाइफ के अंदर तो बहुत ही खराब है, मेरी लाइफ में सब कुछ ऐसा हो रहा है. You know, it was a problem challenge with everyone, even with me when I started my journey on manifestation. But मैंने यकीन करा, मैं ग्रैटिट्यूड के अंदर आया, मैंने 10-20 दिन दिए, उसके अंदर भी कुछ इंस्टेंट्स ऐसे हुए जिसमें मेरे को स्ट्रगल फील हुआ, मैंने मतलब झगड़े हुए, तो मैंने उसको वापस से रीबाउंड करके वापस से ग्रैटिट्यूड जोन के अंदर आई. And you know, I started experiencing the change, this little change in my shift in my energy. I was feeling very grateful, मैं खुश रहने लग गई, थिंग्स मेरे हिसाब से होने लग गई जैसा मैं चाहती थी. तो वी आर ऑन 22nd डे ऑफ ग्रैटिट्यूड, एंड मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब लोग जो कि रेगुलर 22 डे से सारी एक्सरसाइज कर रहे हो, यू गाइज आर विनर, क्योंकि आप लोगों ने डिसाइड किया है कि हम हमारी जिंदगी को बदलेंगे. और कोई भी जना आप लोगों को कुछ भी आगे बोल ले, यू कैन नॉट टेक इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड. आप लोगों ने कई लोग हैं हमारे साथ, 700 से 800 लोग जुड़े हुए हैं, बट ग्रैटिट्यूड डेली जो एफर्मेशन है वो कुछ ही लोग कर रहे हैं, 100 से 150 लोग, उससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं. और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके अंदर मैजिक भी स्लो स्पीड से आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, बट देन अगेन जो 150 से 200 लोग हैं जो डेली ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लाइफ के अंदर रियल चेंज लेके आ रहे हैं. और मैं आज आप सबको आपके माइंड के अंदर एक चीज बोलना चाहता हूँ, यू आर द मास्टर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. There is nobody else who can, you know, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको बोले कि यार तू कुछ ही नहीं कर सकती, तू ऐसी है, तू वैसी है. Stop it. You are the master. Nobody can change your destiny. You are the master of your own destiny. आपकी किताब आप लोग खुद लिखोगे, सिर्फ एफर्मेशन लिखनी है उस किताब में. आपकी जिंदगी की जो किताब है आप लोग खुद लिखोगे, सिर्फ एफर्मेशन लिख दो कि आपको क्या चाहिए प्रेजेंट टेंस में, वो काम हो जाएगा. बिलीव इन द यूनिवर्स, छोड़ दो यूनिवर्स में. सो आई स्ट्रांगली बिलीव जो आज की जो स्टोरी थी वो कई लोगों को ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत थी. तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू गाइस लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. एंड आज हम थोड़ा एक्सटेंड भी करेंगे थोड़ा टाइमिंग को, बट यू गाइस आर विद अस. थैंक यू वेरी मच. बिफोर आई शेयर माय लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, डू एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस? किसी के पास भी कोई भी क्वेश्चंस हैं? So if anybody have any question, take me offline, so we can take it offline. तो जो लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये सब काम आपको खुद करना है, ये आप कट कॉपी पेस्ट नहीं करोगे. मैंने आपको एफर्मेशंस भी दिए हैं, फीलिंग वर्ड भी दिए हैं, आप लोग ये मत करना कि ये कॉपी करा और कर लिया, नहीं. ये सब चीज हम हमारे लिए बनाएंगे, खुद के लिए बनाएंगे, क्योंकि जब आप खुद बनाओगे, खुद हाथ से लिखोगे, आपको फीलिंग डेवलप होगी. ये मेरी फीलिंग्स हैं. जब आप खुद के लिए बनाओगे, खुद के आपको क्या फील होता है अगर वो चीज अचीव हो जाए, यू हैव टू राइट इट एंड डू इट फॉर योरसेल्फ. नोबडी एल्स इज डूइंग एंड कमिंग इट फॉर यू, सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. जितना भी एफर्मेशन का काम है, मैंने सिर्फ एक बेसिक साइंस दी है, पर हर आदमी अपने लिए एफर्मेशन लिखेगा. चलिए, थैंक यू फ्रॉम दिस नोट आई से थैंक यू, एंड रवि भाई इट्स ऑल ओवर टू यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू गाइस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच अंकित, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन. आई एम श्योर सब लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. और मेरे सेशन के बाद मैं पहली बार थोड़ा सा सैड हुआ था ये सोच के कि आप में से कुछ लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी तक क्लियर नहीं है. थैंक यू अंकित, आई थिंक आप यू गिवन अ क्लैरिटी. और वापस रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो नहीं देखा है, प्लीज उसको देखिए, क्योंकि अगर आप ये मैजिक कर रहे हो और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लियर नहीं है, इसका मतलब आप साइकिल चला रहे हो और आपको हैंडल पकड़ना नहीं आता. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये आकर्षण का नियम क्या है इसको आप समझ लो. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अंकित ने मोटा काफी हद तक आज अपने प्रेजेंटेशन में कवर कर दिया है ये कैसे होता है. So thank you so much Ankit, thank you, and let's start the chapter. हम बहुत आज हमारे पास जीवन में भरपूर टाइम है.
Thank you, thank you, thank you. So, who are the people who are reading today? Let's have someone new today, please. Prashant ji wants to read today. Prashant sir. Yeah. Thank you. Day 22, before your very eyes. The world, after all our science and sciences, is still a miracle. Wonderful, inscrutable, magical, and more to whomsoever will think of it. Thomas Carlyle, writer and historian. So ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का टाइटल यह है आपके नजरों के ठीक सामने. इसको प्लीज गहराई में समझिएगा. आपके नजरों के ठीक सामने. गौर से सोचिए कि हमने कितने ज्यादा विज्ञान और उसकी तमाम चीजों को डिस्कवर कर लिया जो कि वाकई में जादू है, या वाकई में एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक है, जादू है. पर इन सबसे भी ज्यादा अधिक चीजें जो हमने अभी तक देखी भी नहीं है. सो विल रीड इट नाउ. आज हम पढ़ते हैं उसके बारे में. 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires would come true. So 7 साल पहले, sorry, let's प्रशांत सर 4 लाइनें पढ़ते हैं अपन. तो 7 साल पहले जब मैंने सीक्रेट को डिस्कवर किया था और मैंने ग्रैटिट्यूड के मैजिकल पावर को डिस्कवर किया था, तब मैंने एक बहुत लंबी लिस्ट बना ली थी मेरी डिजायर्स की. जो जो चीजें मैं चाहती थी वो उसकी लिस्ट बना ली थी मैंने, और वो अब सही हो गई. मतलब वो मेरे जीवन में मेरे को हासिल हो गई. Nevertheless, I took my top 10 desires and carried them with me on a piece of paper every day. Wherever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. तो मैंने क्या किया था, मेरी 10 चीजें जो जो मेरे को चाहिए थी उनकी लिस्ट बना के एक पेपर पे मैंने लिख लिया था और अपने जेब में रख के मैं चल रही थी. और जब जब मेरे को समय मिलता था मैं उस लिस्ट को निकालती थी, पढ़ती थी और उतना आभार फील करती थी जैसे वो मेरे को मिल चुकी है, और दिल से मैं उसके लिए कृतज्ञ होती थी. और जैसे ही एक चीज उसमें हो जाती थी मैं उसको काट के दूसरी चीज लिख लेती थी. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind, and I would say the magic words, "Thank you," for it multiple times in a day, and feel as if it had come true. So जो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरी चाहत थी, जिसको मैं दिल से चाहती थी, वो मैं हमेशा अपने दिमाग में रखती थी और उसको मैं थैंक यू बोलती रहती थी. उसको मैं ग्रैटिट्यूड देती थी बहुत सारे टाइम, मतलब एंडलेस नंबर ऑफ टाइम्स. दिन भर में 5 बार, 10 बार, 20 बार मैं उसके लिए थैंक यू फील करती थी और ये सोचती थी कि मेरे को वो चीज मिल चुकी है. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. तो जैसे जैसे मेरी सारी इच्छाएं पूरी होती गई, मैं वैसे वैसे उनको काटती गई और नई इच्छाओं को अपनी लिस्ट में लिखती गई, और मेरे आंखों के सामने वो जादू चलता गया. मेरे को बहुत अच्छा लगा. One of my desires from my original list was to travel to Bora Bora, near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. So, एक बहुत खूबसूरत जगह है जिसका नाम है बोरा बोरा, जो ताहिती के पास है. मैं बोरा बोरा गई, मैंने वहाँ पे 1 हफ्ता एंजॉय किया, मैंने छुट्टियां मनाई क्योंकि वो मेरी लिस्ट में लिखा हुआ था और वो पूरा हो गया. और जब मैं बोरा बोरा से वापस आ रही थी तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज हुई. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. So, जब मैं बोरा बोरा से छुट्टियां खत्म करके वापस अपने घर आ रही थी तो प्लेन ताहिती में रुका
और तहीती में बिल्कुल ज्यादा लोग नहीं थे, पर तहीती में दूसरे लोग आ रहे थे जो तहीती के लोकल लोग थे। और वो सारे लोग जब अंदर आए तो उनके चेहरे पे बहुत ही अच्छी खुशी थी, एक जॉय था और एक स्माइल सब लोग लेके आए थे। तो उन सब लोगों में बहुत ही पॉजिटिविटी थी जब वो प्लेन के अंदर आए। As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. जैसे ही ये जो फ्लाइट थी बहुत ही शॉर्ट फ्लाइट थी और सब लोग बहुत ही खुश थे। और वो क्यों खुश थे? क्योंकि वो लोग सच्ची में कृतज्ञ थे कि वो जिंदा हैं, वो कृतज्ञ थे कि वो एयरप्लेन पे हैं, वो कृतज्ञ थे कि वो एक दूसरे के साथ हैं, और वो सच्ची में ग्रेटफुल थे कि वो जहाँ पे भी जा रहे हैं तो हर एक पल को वो एंजॉय करके और खुश हो रहे थे और थैंक यू दे रहे थे। They were grateful for their where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list. And the reason I was on that plane was before my very eyes, gratitude. ये लोग जो थे इतने पॉजिटिव, इतने अच्छे, इतने स्माइलिंग लोग थे कि इनके साथ मैं पूरी दुनिया की सैर कर सकती थी इसी एयरक्राफ्ट में। और फिर एकदम से मेरे को ध्यान आया कि जो बोरा बोरा में होके आई ये मेरी इच्छाओं की सूची में सबसे आखिरी इच्छा थी। मेरी सबसे आखिरी इच्छा थी कि मैं बोरा बोरा होके आऊं, और मेरी सारी चीजें जो थी, जो मैंने इच्छाएं लिखी थी वो सारी पूरी हुई। और वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड, आभार की वजह से वो सारी इच्छाएं पूरी हुई। I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your dreams seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you've never felt before, and that is truly priceless. तो ये सारी स्टोरी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करी कि मैं आप लोगों को इंस्पायर कर सकूं कि इस कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और आपको उससे क्या क्या मिल सकता है। आपको खुशी, आपको अच्छे लम्हे, सब चीज मिल सकते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है अगर आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हो तो। From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. तो जब मैंने ये चालू करी, जब मैंने आकर्षण के नियम को समझा और मैंने ग्रैटिट्यूड का कमाल समझा, जिस दिन मैं इसका मैजिक समझ गई तब मैंने एक लिस्ट बनाई। और उस दिन से लेके जब तक मेरे पास सारी लिस्ट, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, वो जो समय था वो समय था 4 साल का। आप वापस समझिएगा, 4 साल पहले उसने जो इच्छाएं लिखी उसकी सारी इच्छाएं 4 साल में पूरी हुई। To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down, and I would lose my home and everything I owned. तो ये बता रही है कि आपको मैं बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, ये सारी चीजों का आपको विश्वास नहीं होगा। जिस दिन मैंने अपनी लिस्ट बनाई उस दिन मेरी स्थिति ये थी कि मेरी कंपनी पे उधारी थी $20 मिलियन की। $20 मिलियन हो गया करीब करीब 140 करोड़ रुपए। 140 करोड़ रुपए की मेरी कंपनी पे उधारी थी जो मैं चुका नहीं पा रही थी, और स्थिति ऐसी थी कि मेरे को मेरा घर बेचना पड़ सकता था। The money I owned on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overtaking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. तो मेरे को मेरे क्रेडिट कार्ड में भी पैसे नहीं थे कि मैं कुछ कर सकूं, पर जो मैंने लिस्ट बनाई थी, जो मेरी इच्छाएं थी कि दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह जाऊं, वहां पे छुट्टी मनाऊं, अपने जितने भी मेरे पास लोन थे वो सारे पे कर दूं, मैं अपनी कंपनी को और बड़ा कर दूं, मेरे जितने रिश्ते हैं उनको मैं जितना खूबसूरत बना सकती हूँ उतना खूबसूरत बना दूं, मैं अपने फैमिली के लिए बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छा जीवन उनके लिए उनके साथ बिता सकूं, और 100% मैं स्वस्थ रहूं, हेल्दी रहूं।
और मेरे पास इतनी एनर्जी हो कि मैं जीवन को जिस हद तक जी सकती हूँ उस हद तक जीऊं, और सारी जितनी भी मटेरियल चीजें हैं वो मेरे पास रहें. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. तो रोंडा कह रही है जो मेरी नंबर 1 इच्छा थी, सबसे बड़ी इच्छा जो थी ये थी कि मैं लोगों को खुशी देना चाहती थी अपने काम से. मैं चाहती थी जो मैं काम करूं उससे लोगों का जीवन बदल जाए और लोग खुश हो जाएं, और ये सब हम फील कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उसकी ये किताब से हमारा लाइफ कैसे बदलता जा रहा है. So now it is your turn to use gratitude's magical powers to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. So आज आपको क्या करना है? आज आपको अपनी 10 इच्छाओं को अपने सामने रखना है. जो 10 इच्छाएं आपने शुरू में लिखी थी वो सारी लिस्ट आपको अपने साथ रखनी है. एक पेपर पे एक पेन से लिख के वो पेपर आपको अपने जेब में रखना है. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you've received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. तो जब भी आपको समय मिले आप उसको निकाल के उन इच्छाओं को पढ़ोगे और उसके लिए कृतज्ञ महसूस करोगे और ये सोचोगे कि वो इच्छा आपकी पूरी हो गई है. जितना ज्यादा आपके मन में आभार है, जितना ज्यादा कृतज्ञ फील करोगे, उतना ही ज्यादा असर होगा उस चीज का. Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you've received it. तो ये कह रही है एटलीस्ट दिन में 2 बार उनको पढ़ के कृतज्ञ महसूस करना है. मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ज्यादा कर लेना तो अच्छी फीलिंग में आ जाओगे. If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward. And whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. So आज उसको आप अपने पर्स में रखोगे, उसको निकालोगे और उसको पढ़ते रहोगे पूरा दिन, जब तक आप उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील नहीं करने लग जाते. और जितनी बार भी कर सकते हो कर लेना, पर एटलीस्ट 2 बार तो करना ही है. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you're like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. तो जब आपकी इच्छा जो आपने लिखी है वो पूरी हो जाती है, आप उसको काट देना, उसको पेंसिल से या पेन से काट देना. और मेरे साथ तो क्या होता था, जब मेरी इच्छा पूरी होती थी तब मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे और मेरे को लगता था जो इम्पॉसिबल चीज है वो पॉसिबल हो गई और वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड के मैजिक से हुआ. मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते थे और मेरे को समझ में आता था कि ग्रैटिट्यूड कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जीवन में. सो थैंक यू सो मच प्रशांत सर, वेरी नाइस, वेरी वेल रेड. सो आज की जो एक्सरसाइज है, आपको अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है और उसमें आपको थैंक यू जो आप रोज करते आ रहे हो. और आज दिन की शुरुआत में, दिन का शुरुआत सुन लीजिएगा, आज मतलब अभी के बाद आपको अपनी डिजायर की लिस्ट लेनी है. अगर आपके पास डायरी में है तो आप एक पेपर में लिख लेना और उस पेपर को अपने जेब में रख लेना. और हर एक डिजायर के बाद आपको 1 मिनट लेना है, उसको विजुलाइज करना है, उसको सोचना है कि वो चीज पूरी हो चुकी है और उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना है. जितना ग्रैटिट्यूड आप दे सकते हो वो देना है. पूरा दिन इस डिजायर को अपने पॉकेट में रखेंगे और एटलीस्ट 2 बार का मतलब ये नहीं सिर्फ 2 बार ही हो. अगर आपको ज्यादा भी करना है तो आप ज्यादा बार भी कर सकते हो. उसको अपनी जेब से निकाल के पढ़ना है और फील करना है कि वो चीज आपके को मिल चुकी है. ये आपको ऐसा ग्रैटिट्यूड में रखेगी, इतनी खुशी देगी और आपकी फीलिंग्स वाइब्रेट होंगी और आपकी डिजायर जरूर पूरी होगी. और रात को सोने से पहले मैजिक पत्थर ले लेना और उसको अपने हाथ में पकड़ के जो भी बेस्ट चीज हुई उसके लिए धन्यवाद दे देना. सो थैंक यू सो मच. सो एनी क्वेश्चंस अबाउट द चैप्टर प्लीज, क्योंकि क्या होता है कि रोज हम चैप्टर पढ़ लेते हैं और शेयरिंग्स अभी नहीं लेंगे, पहले क्वेश्चंस लेंगे.
कि आप लोग समझते नहीं हो, आप लोग फिर एक्सरसाइज कर नहीं पाते हो। कल शाम को भी मेरी 2-3 लोगों से बात हुई थी जिन्होंने कल की एक्सरसाइज मिस कर दी थी। So आज please whatever questions is there with this chapter, please ask right now. So Anuj ji, can we start? Anuj ji, you have a question. Yes. Thank you, Ravi ji and Ankit ji for this amazing, powerful morning. So Ravi ji, my question is, जो activity आपने अभी बताई है of writing down. So I actually joined the class I think 4 or 5 sessions back. So and मैंने पुरानी classes cover up नहीं करी हैं. So my question to you was कि हमको जो 10 जो मतलब ये जो list बनानी है हमारी after this as per the Rhonda exercise, इसमें क्या हमको affirmations लिखने हैं कि हमको इसमें अपने desires manifestation के रूप से लिखने हैं कि that I am happy to achieve this. क्या वो मेरे को present tense में लिखना है कि मेरे को खाली अपने desires लिखने हैं उसमें? अनुज जी, मैं एक पहले तो बताऊंगा कि क्या होता है कि ये पूरी एक साइंस है, एक पूरा प्रोसेस है। क्या होता है कि हम लोग सीधा सडनली मिडवे में कम करके बोलेंगे कि हम डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, तो वो चीज होती नहीं है। आप आए हो, वेल गुड, बट आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू मस्ट फिनिश ऑल द एक्सरसाइजेस बिफोर गेटिंग इनटू दिस पाथ। अब क्या होगा अगर आप बीच में से चालू करोगे और आपको रिजल्ट नहीं आएंगे तो आपका विश्वास उठ जाएगा। True. डिजायर्स बेसिकली आपको लाइफ में क्या क्या चीज चाहिए, वो मतलब बुक स्टार्ट होने से पहले उसने समझाया था ये सारी चीजें आपको लिखनी है। So I don't know, आप if you're trying to join from this chapter or 17th chapter, और आप क्या होगा आप उस फील में नहीं आ पाओगे, ग्रेटिट्यूड की फील में। It's a long way to go, you know, it's such a science. Okay, so I will possibly go and complete my course first. Yeah, I think for a person like you is already into it, और आप तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो, जैसे आपकी शेयरिंग होती है, पर आप इसको आप शुरू से करो, क्योंकि वक्त आके और आपको चीज नहीं मिलेगी तो आपका विश्वास टूट जाएगा, और इसलिए मैं आपको गाइड नहीं करना चाहता। ठीक है सर, I appreciate that. What do you think about this, Ankit? Hi, good morning, Ravi and Ankit. Thank you, Ankit. बहुत ही जोरदार प्रेजेंटेशन था आज का, और काफी सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई, and thank you, Ravi, always for taking so much time to explain everything. There are few questions in WhatsApp group which I would take because क्योंकि शायद वो लोग आज Zoom पे नहीं आ पाए और मेरे भी वो सवाल थे। So Ankit Chitlanga and Amrita Oja ji are asking that जो 10 चीजें हमें लिखनी है वो एक ही बार में लिखनी है, और या फिर 1 से 5 years तक हम टाइम टू टाइम, it may take 1 to 5 years to execute, or should we write few big and other small? तो किस तरीके से हमें 10 चीजें लिखनी है? यार सुधीर, इसमें 10 डिजायर्स जो आपने बुक के पहले दिन लिखी थी, बिफोर वी स्टार्टेड द चैप्टर, रोंडा ने बोला था आपको 10 चीजें जो चाहिए, 10 इंपॉर्टेंट चीज। मतलब इफ यू वांट योर रिलेशनशिप विद एनी पर्सन टू बी इम्प्रूव्ड, यू डोंट नो कि आपका रिलेशनशिप कब सुधरेगा, राइट? समझ लो, आपको मतलब ऐसी चीजें जो आप सच्ची में दिल से चाहते हो, जो चैप्टर के बिगनिंग में थी, उसी डिजायर को लिस्ट को पढ़ने के लिए बोल रही है कि वही डिजायर्स पढ़ो। ये बता रही है जब मैंने जर्नी चालू करी थी तो मेरे को 4 साल लगे थे वो डिजायर्स पूरे करने में। Okay. And second question in this is that any of those like Ankit wants to add something. So, yeah, please. सुधीर जी आप सेकंड क्वेश्चन पूछ लो ना, तो मैं एक साथ आंसर दूंगा। हाँ, if any of those like 1 to 4 are done within a short period and others are remaining, should we replace those done right away with new wish, or we first wait for 10 to complete and then write another 10? ना तो ठीक है, दोनों के आंसर क्या है। अपन ने जब डे 13 को टॉप 10 डिजायर्स निकली थी, है ना, तो आज वो लिस्ट को वापस उठाना है और उसको विजुअलाइज करना है एंड से थैंक यू फॉर इट। ठीक है, आपका ये है ना जो मैनिफेस्टेशन है, टेक इट एज अ गेम। जैसे अपन ने कहा था कि स्टार्ट विद स्मॉल डिजायर्स, अगर आपकी छोटी डिजायर्स पूरी हो जाती है ना तो मजा आता है, देन यू कैन स्लोली एंड स्टेडीली इंक्रीज इट। ठीक है, तो मैं ये करूंगा कि 1 या 2 तो बड़ी लिख लो, जैसे एक अर्निंग की लिख लो, एक हेल्थ की लिख लो कि हाँ यार आप चाहते हो कि या फिर ट्रैवल की लिख लो जो कि थोड़ी बड़ी डिजायर है, या साल का ये मेरा पर्सनल गोल है ना। बाकी जो डिजायर्स हैं वो थोड़ी छोटी छोटी सिंपल डिजायर्स रखो, एक बार अगर वो पूरी हो जाए उसको काटा, नई डिजायर लिख दी। बट एट अ टाइम स्टार्ट वर्किंग ऑन 10 डिजायर्स ओनली, मतलब एक समय में एक जो डिजायर है वो 10 डिजायर रखिए, सिंपल। राइट, थैंक यू। तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ टू यू, अगर आपको क्लियर है तो सबको क्लियर हो गया। जी, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर।
हाँ ठीक नो जी, आप भी लिख सकते हो कि कोई भी जो 10 डिजायर्स हैं इन फॉर्म, आज आप लोगों ने अफर्मेशन सीख लिए हैं तो आप अफर्मेशंस के रूप में भी उन डिजायर्स को लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सारिका जी पूछ रही हैं अफर्मेशंस हम लिख लें इन फॉर्म ऑफ अफर्मेशंस। आपको आज से पहले नहीं मालूम था बट अब मालूम चल गया तो आप उसको अफर्मेशंस के फॉर्म में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आए भैया, एक चीज मुझे भी पूछनी है। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आज आपने सारी क्लेरिफिकेशन बहुत अच्छे से किया है। मैंने डे 0 भी देखा है, कल देखा था, आज डे 1 भी देखा, तो मुझे काफी चीजें अच्छे से समझ भी आ रही हैं और अच्छा भी लग रहा है। अब मुझे एक छोटा सा पॉइंट और है कि टू डू लिस्ट में क्या है फिर? टू डू लिस्ट चलिए अब मुझे एक कंफ्यूजन आ जाता है एक्चुअली, क्या बीच का मिस किया है ना, ये जेन्युइन कंफ्यूजन है बट मैं आपको सबको फिर से क्लियर कर दूं। डिजायर क्या होती है? डिजायर, व्हाट इज डिजायर? कि जो चीज आपको चाहिए, ठीक है, जो चाहिए, एग्जैक्टली। टू डू लिस्ट क्या है? आज आपकी दिन भर की टू डू लिस्ट क्या है? ओके, दिन ठीक भर है, जो की दिन भर आज मुझे इसको पढ़ाना है, आज मुझे खाना बनाना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है। तो टू डू लिस्ट आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू डू, करनी बहुत जरूरी है। टू डू लिस्ट है। डिजायर चीज ऐसी होती है कि हाँ यार मैं ये चाहती हूँ लाइफ के अंदर। अब ठीक है, आज हो, कल हो, परसों हो, बट लेकिन टू डू तो आज की आज है, 2-4 दिन में हो जाना चाहिए। मतलब शॉर्ट टर्म इन मान लो, थोड़ा सा मतलब डेली रूटीन मान लो, बेसिकली आप ही मान लो आपको टू डू है लिस्ट है कि आज का मेरा ये काम है। आप टू डू को कंफ्यूज मत करो, आप उसको लिख दो कि मेरे काम की लिस्ट क्या करने की, सिंपल। और डिजायर इज समथिंग व्हिच इज लिटिल बिट बिगर। या थैंक यू सो मच। ठीक है, और हाँ दीदी। अंकित भैया, अपन जो ब्लेसिंग्स और ग्रेटिट्यूड सुबह मॉर्निंग में लिखते हैं, तो अपन डे 1 से रिपीट भी करना है उसे, या जो अपन डेली लिख रहे हैं वो ही? बिकॉज अब 28 डेज तक हो जाएगा, फिर आपका क्लास 28 डेज ओवर हो जाएगा, उसके बाद हम रोज डेली लिखेंगे। तो हम जब रोज लिखेंगे तो हम रोज उसको रिपीट करते हैं। मेरी बात सुनो, मैं पहले भी कहता हूँ, स्टे इन प्रेजेंट। आज का चैप्टर कर लो, आज की जिंदगी, आज का खाना जो बना है ना वो खा लो। आने आप है ना 10 दिन आगे का खाने क्या बनना है उसकी प्लानिंग कर रहे हो। 10 दिन आगे आप घबराओ मत, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि हम आपको बिल्कुल ही छोड़ देंगे कि जो इच्छा हो कर लो। पूरा कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर बना के देंगे। सो प्लीज स्टे इन प्रेजेंट, डोंट गो। नहीं, आई मीन टू से कि अपनी जो पहले की ब्लेसिंग्स लिखी है वो भी मॉर्निंग में रिपीट करनी है क्या रोज डेली? अगर बात ये क्वेश्चन अंकित के साथ भी था, हम दोनों ही कर रहे थे कि करें नहीं करें, क्योंकि अंकित का कहना था रवि भाई आप सबको बोलोगे कि 25th डे पे या 22nd डे पे 220 डिजायर्स को पढ़ो और थैंक यू बोलो, तो शायद लोगों के लिए ज्यादा हो जाएगा। बट मेरा सोचना यही है कि अगर आप 220 डिजायर्स को पढ़ोगे और उसके बाद थैंक यू बोलोगे, वो वाली जो फीलिंग है, दिल से जो फील करोगे, आपको आपके एम पे, आपको आपके गोल्स पे जल्दी ले जाएगी, आपकी डिजायर्स के पास जल्दी ले जाएगी। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेटिट्यूड आपके अंदर आएगा उतनी जल्दी अच्छे रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। बट रवि भाई ये भी ऐड करूंगा कि अगर कोई 10 ही लिख रहा है ना और डेली वही पढ़ रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है कुछ भी। तो वो ये ना सोचे कि यार इन्होंने अगर 250 पढ़ी और मैंने 10 ही पढ़ी तो मैंने कोई गलत करा है। मैं 10 ही करता हूँ, रवि भाई वैसे करते हैं, बट देन अगेन दोनों के मैनिफेस्टेशन काम करते हैं, दोनों के एफर्मेशन मैनिफेस्टेशन दोनों के काम करते हैं। इट इज आपको जैसे मजा आ रहा है आराम से कर सकते हो, बट करना जरूरी है। इसके चक्कर में करना मत छोड़ देना, बस सिंपल सी बात ही है। थैंक यू बोथ ऑफ। थैंक यू दी, थैंक यू वेरी मच। फॉलो मी। आप भैया भैया आई हैव अ क्वेश्चन। जो हमारी डिजायर्स हैं, तो बिकॉज अभी आपने एग्जैक्टली ये बता दिया एफर्मेशंस में हमें कैसे लिखना है, तो कैन वी लाइक जो हमने फर्स्ट डे लाइक स्टार्टिंग में लिखे थे 10 डिजायर्स, कैन वी लाइक ऑल्टर देम अ लिटिल बिट एंड बी लाइक मोर स्पेसिफिक, बिकॉज नाउ इट स्टेज एवरीथिंग। यू कैन ऑल्टर इट। मतलब आपको लग रहा है कि यार मेरे ना ये मैंने गलत लिखा था, ये थोड़ा ऑल्टर कर दो, करता हूँ, आप कर सकते हो। नो इश्यूज, यू कैन ऑल्टर इट डेफिनेटली एट एनी गिवन डे, एनी गिवन पॉइंट। ओके, थैंक यू। अंकित, हाँ दीदी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो लोग नए ज्वाइनिंग किए हैं उनके लिए एक बार बीच में कभी अपन इवनिंग में या एनी टाइम रिपीट कर सकते हैं? रवि भाई यू हैव टू आंसर फॉर दैट। मैम मैंने बहुत मतलब एक्चुअली हुआ क्या, कल के सेशन के बाद मैं एक्चुअली पहली बार 22 दिन में सैड हुआ, क्योंकि कल ऐसे क्वेश्चन आए थे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थे, और मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको चाहिए तो हम लोग वापस कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने पूरी कोशिश की थी कि बहुत सिंपल तरीके से उसको समझा सकूं, और उसका वीडियो भी साइट पे है।
बट अगर सब लोग चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वापस समझना, तो हम लोग नो प्रॉब्लम, वी कैन डू इट, नॉट एन इशू, वी कैन डू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगेन अगर लोग चाहते हैं। आप लोगों में से किस किस ने बिल्कुल भी नहीं देखा है और किया भी नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? प्लीज भैया राइट। मैंने वीडियो में देखा है, मैंने वीडियो में देखा है, अच्छा भी लगा है, समझ आया है, लेकिन अगर होता है प्रैक्टिकली वापस ही एक बार आप वापस समझाते हैं तो इट विल बी बेटर, अच्छा होगा। मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब वीडियो देखती हूँ अच्छा लगता है, लेकिन इससे ज्यादा बेटर होगा कि सेशन लाइव हो जाए। एक बार आप लिख दो, जिसको चाहिए ME लिख दो, जिसने नहीं देखा। अगर ज्यादा लोग होते हैं तो वापस करेंगे, अदरवाइज वो वीडियो इट्स गुड इनफ टू। अनुज जी को चाहिए, उषा जी को चाहिए, संदीप जी को चाहिए, सीमा जी को चाहिए, स्वाति जी को चाहिए। अब तो सबको ही चाहिए। भैया एक्चुअली 1 जून को स्टार्ट करा था, 31 को आपने करा था, तो वो हमने क्लास ही अटेंड नहीं करा। रवि जी, अंकित जी, ये एक्चुअली क्या दिल मांगे मोर, और आपके सेशंस ऐसे हैं जो कि हमेशा चलते रहने चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक एक यू। बार प्लान करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वापस से समझने की। एंड मैं चाहूंगा कि प्लीज आप लोग जितने क्वेश्चन हो ना, जितने क्वेश्चन हो सब लिख के लिए आइएगा, बिकॉज अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लियर नहीं है, फिर चाहे सीक्रेट हो, चाहे मैजिक हो, चाहे कुछ भी हो, सब मतलब इट विल नॉट वर्क। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग बस ये सोच के लग जाते हैं कि जो सोचोगे वो मिल जाएगा। इट डजंट वर्क्स लाइक दिस कि हाँ मैंने ये सोचा आज मेरे को कल 500 करोड़ चाहिए, मैंने लिख दिया मेरे को 500 करोड़ चाहिए और मेरे को मिल गया। मतलब थोड़ा सा आपको उसका डेप्थ समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा लोगों के दिमाग में यही है कि यार जो सोचोगे वो मिल जाएगा। बट आई मीन लेट मी एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। लेट्स टेक ले लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, है ना, इस हफ्ते संडे को या कुछ कर लेते हैं ना, लेट्स सी, संडे या वेडनेसडे को, जो बीच में लेना हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। हाँ, तो एक तो नेटवर्क पार्टी भी है भाई, तो देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स प्लान। वेडनेसडे या थर्सडे को हम लोग नेटवर्किंग रखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है। एक अक्षता, I have a question. हाँ बताएं वैशाली जी, बोलिए बोलिए। Actually, about the this affirmation, I wanted to ask what you were telling us about. Can I ask for my children? Like, okay, I am grateful that they receive what they wanted. Like, if my daughter wants a job of her choice, Yeah, so can I do that? affirmation has to be written for yourself, and Only for myself. others you have to wait for 2 more days. We will explain on that. No, means I means for the children. If you're asking, it's for ourselves Yes. only. Now that I'm happy. हाँ हाँ, So can we do that? हाँ आप कर सकते हो डेफिनेटली, बट मैं उसको आज आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि क्या है, आज अपन आज ही की एक्सरसाइज करेंगे। जो आज का ज्ञान मिला है उसको लेंगे, 2 दिन बाद आप 2 दिन का और वेट कीजिए। 2 दिन बाद बाकी सबके भी यही क्वेश्चन है कि हम हमारी घर वालों के लिए, हमारे हस्बैंड के लिए, हमारी वाइफ के लिए, हमारे फादर के लिए, हमारी मदर के लिए कैसे करें, वो 2 दिन बाद हम लेंगे और सबका आंसर दे देंगे। प्लीज Thank you. Okay. है ना, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू। And one more thing. कल मैंने मेरा वॉलपेपर कैट के रिलेटेड रखा, एंड उस पे वो भी था कि आई एम कमिंग क्लोज टू इट एंड ऑल दैट। आई शेयर्ड इट इन द सो एज ऑफ नाउ उसको देख के तो मैं नहीं डर रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि जब रियल कैट आए या टीवी में मैं देखती हूँ, चैनल चेंज कर लेती थी, आई विल ट्राई कि मैं वो ना। तो अपने आप को 1 से अगर 10 में मार्क्स देंगे, पहले अगर आपको 10 पे डर लगता था तो आज कौन सी स्टेज पे आ गए हो? नहीं, मैंने वो क्यूट, मतलब वो कैट इतनी भयानक नहीं रखी है, तो इट्स फाइन। नहीं, डर का लेवल कितने पे आ गया? पहले 10 का लेवल था, आप 10 पे थे, आज आप कितने पे हो? 7 या 8 पे हो? 8 पे आई कैन से, मींस बिकॉज़ आई एम फीलिंग पॉजिटिव कि नहीं, मैं नहीं डरने वाली हूँ, खुद को चेंज आप करना ये है। मत बोलो मैं नहीं डरने वाली हूँ, ये गलत है स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट है। You have to say positive statement, I am loving the cat. अंकित, मैं एक बार ये बता दूं कि आप लोग जब भी जो अफर्मेशंस अंकित ने बताए हैं, अगर आपने नई वर्ड यूज किया अफर्मेशंस में, नो वर्ड यूज किया, तो ब्रह्मांड क्या करेगा, उस नो वर्ड को काट देगा। अगर आपने ये लिखा है मैं नहीं डरने वाली हूँ, तो ब्रह्मांड नहीं को काट देगा, क्योंकि उसको भी नेगेटिविटी पसंद नहीं है, उसकी डिक्शनरी में नो का वर्ड नहीं है। हाँ जी। तो अगर आप वो नहीं काट देगा तो आपके साथ क्या होने वाला है? मैं डरने वाली हूँ, मींस। हाँ, तो मैं अच्छा वैशाली जी, मैं एक छोटा सा पॉइंट ये क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप 1 से लेके 10 में अगर मार्क्स देते हैं आपके डर को, तो कल आप 10 पे थे, ठीक है, एग्रीड? हाँ। आज आप कितने नंबर पे हो? 9 पे हो आज आप? हाँ,
For sure. तो सेलिब्रेट दैट थिंग. आप एक पॉइंट बढ़ गए हो, उसको ब्लेसिंग्स दो आज की तारीख में. यू हैव मूव टुवर्ड्स वन स्टेप टुवर्ड्स योर गोल कि हाँ यू आर free from you are very loving the cat. Celebrate that small success that you had with the cats. Okay, yeah. Thank you so much. So we have Anita ji and Sarika. Sarika, Anita ji, can you unmute yourself? Hello everybody. A lovely session today. Thank you ji, thank you. General question है, जैसे जैनिज्म में हम जब प्रे करते हैं तो हम सबको क्षमापना देते हैं. करते हैं और क्षमापना देते हैं. क्षमापना एंड ग्रेटिट्यूड, उसमें कोई फर्क है या सेम है? नहीं, फर्क है, डेफिनेटली फर्क है. जैसे मैंने एंगर में कहा था, आपने एंगर का एफर्मेशन लिखा होगा कि मैं तुझे माफ करती हूँ. तो आपने क्या करा, आपने अपनी जिंदगी में अपने मन में कोई भी कचरा नहीं रखा. आपने सब कचरों को लेके बोला मैंने तेरे को माफ किया, तेरे को माफ किया, तेरे को माफ किया. सिंपल है ना? तो यू आर नॉट कीपिंग एनी गार्बेज इन योर हार्ट. आपकी तबीयत बहुत अच्छी रहने वाली है क्योंकि आपके मन में कोई पाप नहीं है. आपने हर चीज को माफ कर दिया. या फिर किसी चीज का डेबिट क्रेडिट बैलेंस आपने रखा हुआ है कि नहीं भाई तेरे को माफ नहीं करूंगी, तेरे को मैं नहीं छेड़ूंगी, तेरे से मैं बदला लेके रहूंगी. तो वो आप अपने मन में अभी भी एक कचरा लेके बैठे हो. तो यू हैव टू डिसाइड किसके साथ आपने डेबिट क्रेडिट बैलेंस रखा हुआ है, बैलेंस आउट नहीं किया हुआ है, और किसके साथ आपने डेबिट क्रेडिट बैलेंस को जीरो कर दिया है माफ करके. पूरा ग्रुप, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, पूरा ग्रुप अपना डेबिट क्रेडिट बैलेंस को जिसके साथ भी झगड़ा है कुछ है उसको जीरो कर ले. नहीं, जैसे मैं रोज प्रेयर में मिच्चा में डुकुम कहती हूँ सबको, अपने जो जितने भी सूत्र है उसमें वही है. तो कंटिन्यू रखूं एंड साथ साथ में ग्रेटिट्यूड भी उन सबको देती जाऊं. आपने एक तो क्षमा करी कि भाई मेरे को कोई भी गलती हो मैं माफ कर दो, ठीक है. अब ग्रेटिट्यूड, यू आर फीलिंग हैप्पी फॉर व्हाट यू हैव रिसीव्ड. अगर आपको कोई अच्छी हेल्प मिली है या ग्रेटिट्यूड क्लब में आके आप कुछ चीज सुन रहे हो, से थैंक यू कि यार मुझे कुछ नया सुनने को मिला. मतलब आप ये समझो कि अगर यूनिवर्स ने आपको कोई चीज दी है, आप उसको थैंक यू तो बोलोगे. या आप किसी को कोई चीज देते हो, कोई आपको थैंक यू बोलता है तो कितना अच्छा लगता है. अच्छा लगता है. राइट, यस ऑफ कोर्स. इसी तरीके से आपको अगर यूनिवर्स, गॉड अगर कुछ दे रहा है तो से थैंक यू टू यू आल्सो. ओके, थैंक यू. So Sarika ji, you have a very nice question. Please, can you ask this question जो आपने चैट में भी लिखा हुआ है? भैया, I wanted to ask कि जैसे मेरी डिजायर है कि मुझे अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करना है, बट मेरे फादर है जो कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. तो मैंने वो मैनिफेस्ट करके रखा हुआ है कि मुझे उनके साथ ट्रैवल करना है, पर हो सकता है उन्होंने वो चीज नहीं सोची हो. तो मतलब अब वो एक सेपरेट इंडिविजुअल है, सो how does it work? फिर भी मेरा ये पूरा होगा डिजायर कि मतलब what is it? अब मैं आपकी वर्ड में आपके सबकॉन्शियस माइंड की आपके थॉट्स बताता हूँ. आपने ये लिखा कि मेरे को ट्रैवल करना है मेरे फादर के साथ, ठीक है? नहीं, मतलब मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया कि मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ, मुझे बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया. एग्रीड, टोटली एग्रीड, ठीक है. हाँ. बट आपने अपने मन में दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा कि मेरे फादर की तबीयत खराब है. राइट. आप क्या है बेसिकली, मेरे फादर कैसे चलेंगे, हाउ में जा रहे हो. हेलो, हाउ मत जाओ. आप अपनी विश को यूनिवर्स को दे दो कि मुझे ये चाहिए कि मेरे फादर के साथ मैं फैमिली ट्रिप लूं. सिंपल एंड क्लियर. ओके. और जितनी स्ट्रॉन्ग और जितनी क्लियर वो फीलिंग होगी ना, आप वो ट्रिप ले लोगे. अच्छा, मतलब इवन इफ सामने वाले ने उस चीज को सोचा नहीं होगा, बट स्टिल आई विल गेट माय डिजायर. इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. किसकी पावर ज्यादा? अच्छा, आपकी ग्रेटिट्यूड की पावर ज्यादा है तो हो सकता है उनका हार्ट भी पिघल जाए, उनकी तबीयत के अंदर शिफ्ट आ जाए और वो बोले यार बेटा मैं चलना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, लेट्स गो फॉर ट्रैवल. तो लॉजिक, आप बेसिकली क्या है, थोड़ा सा लॉजिक ढूंढ रहे हो इन योर मैनिफेस्टेशन दैट हाउ इट विल हैपन. राइट. तो उसमें लॉजिक मत ढूंढो, लेट इट फ्लो. ओके. कहां से क्या होगा आपको नहीं पता, बट वो हो जाएगा. ऑल राइट. थैंक यू सो मच भैया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सो वी हैव शाइशा जी.
Sir, I have a sharing. एक सेकंड क्वेश्चन ले लो प्लीज. Yeah, sure. Thank you. So, and Anita ji, Paloma, you have a question, please. You can share. भैया, I have this question ये regarding ये जो negative affirmation था ना, so it's something relating to parenting. What I do is I just want to ask, like, is this the right way or not? What I do with my son is I play a reverse psychology. तो I make it sound like नहीं आज हरम तो ये नहीं खाने वाला है, ये मैं किसी और को खिलाऊंगी and I'm not going to give you and this and that. तो then he reacts कि नहीं आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, मुझे तो खाना है. तो is it wrong? Is it? Definitely it is wrong because आप उसको ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि नहीं तेरे को ये नहीं करना है. तो वो यूनिवर्स है, छोटा सा बच्चा है, सबकॉन्शियसली बोलता है ना शब्द समझ में नहीं आता, मतलब ये खाना है मेरे को, आप रोको मत, मैं यही खाऊंगा. आप उसको ये बोलो. But this is what I want. क्या? I want him to eat, but I tell him in a negative way. तो why do you want to take a negative way? आप ये बोलो ना कि तू खा रहा है, ये तूने खा लिया, तेरे को बहुत पसंद है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट उसको पॉजिटिव वे में करो. नेगेटिव वे में करोगे तो वो हर चीज को नेगेटिव वे में करेगा लाइफ के अंदर. इट्स अ रॉन्ग, मतलब मेरे को ऐसा लगता है इट्स अ रॉन्ग थिंग. मतलब अपने बच्चे को पॉजिटिव माइंड ऑफ फ्रेम के साथ अपने को पेरेंटिंग करनी चाहिए कि तू ये क्या नाम है आपके बच्चे का? Arham. Aram. Aram, thank you, Aram. You are eating this vegetable. Thank you, Aram. You are eating this. Yes. So negativity will not work. Okay. Yeah. Okay. So we have the last sharing from Saisha. Yes, Saisha, please. First of all, I just want to thank you both of you. बहुत एक ऐसा होता है कि हमारी एज जो 20 to 26 के लोग होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को रख ही नहीं पाते हैं आगे. दे आर जस्ट ऑलवेज हाइडिंग एंड समटाइम्स उनको ऐसा लगता भी है कि मे बी आवर प्रॉब्लम्स आर नॉट दैट बिग कि हम सबके सामने रख पाए. सो आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी वाज ऑलमोस्ट ऑन द स्टेज ऑफ सुसाइड. शी टेक्स्टेड मी अप and उसको मैंने इस ग्रुप में ज्वाइन करवाया and she's so happy now. She's not here with us in the video call right now. She watches the video after it is done and now she's so happy. I can't even express you, and watching her happy makes me so happy. Thank you so much. And I have another sharing also. 2-3 दिन से ऐसा हो रहा था कि I was having a dream, relatable, of a cow chasing me again and again. Continuously ऐसा हो रहा था and then I just went on the net and I checked it. तो ऐसा लिखा हुआ आया कि it happens because your subconscious mind is telling you that you have been hurting someone very special to you. और आज सुबह से I was very upset because of it. But आज जब मैंने आप लोग का ये सेशन जो प्रेजेंटेशन देखा, so I just got my answer कि ये और कुछ नहीं है. It is my subconscious mind only which is telling me, and I have to tell my mind that I have not done anything wrong to anyone. Just a person के लिए मेरे mind में चीज आ रही है. I have to remove the feeling, and I was so happy. I was literally crying while watching your presentation. Thank you so much. Aisha, thank you so much for a wonderful sharing. बहुत ही अच्छा लगा. अगर किसी की लाइफ हम सब लोगों ने बचा ली, so we must pat her back. We must pat her back. Thank you so much, all of you. The credit goes to the entire club. Thank you so much. Thank you everyone in this But group. again, वापस आपका affirmation गलत है. आपने क्या बोला अपने subconscious mind को? Yeah. Okay. I said I have not done any wrong to anyone, but I shall say. I have always been good to everyone. Good to everyone, yeah. I have always been good to everyone. Yeah, right. Don't tell your subconscious mind, I have not done anything wrong to anyone. That is negative. Okay, thank you so much, sir. Once again, thank you so much, guys. Thank you so much for a lovely sharing. And thank you, Bhaiya. And we are above time, so let's take all the questions on WhatsApp. Anyone has any questions? Thank you so much. Thank you so much. आप लोगों का दिन मंगलमय हो. And thank you. Good day, everybody. Thank you very much. So much, everybody. Thank you so much, Auntie. Thanks, everyone. Thank you so much. Thank you.